It's 5:59. Okay, so we will start exactly at 6:01. Okay, today actually we are going to analyze each question by question, all the questions of this UPSC mains zoology. Okay, what I have just basically done is that I have just individually written every question on every one slide, and then I have just correlated that question with the previous questions which were asked. Okay, we will also compare whether there was any relation is there with that question with the actual syllabus or not, or whether that question is just coming from nowhere in the syllabus. Okay, so that you will get an idea that how you should approach this UPSC zoology syllabus. Okay, so let's start. This is the first question of this UPSC zoology paper. That is the question asked about this, what is mean by gametogony in the Monocystis. Okay, basically it is originate from this point, that is the paper 1, non-coded protozoa. Okay, in that this locomotion, nutrition, reproduction, sex, general features and life history of Monocystis is there. Okay, so from that Monocystis, this life history, reproduction, this part, reproduction parts from this gametogamy has been come. Okay, so although it was quite even if we just studied this reproduction and this its Monocystis reproduction, you will get to know that it is from this gametogamy part, it is from this reproduction. Okay, it is quite direct also because there was no any difficulty was there. Okay, the previous year question there was no gametogamy directly were asked. Okay, in 2010 in the Indian Forest Service they have asked about the life history of Monocystis. Okay, that too for only 8 marks. Okay, here you will specifically will be asked to only write about the gametogony only. Okay, here we are supposed to write entire life history, and in that life history this gametogamy will be a smaller part. Okay, so although this was not a direct previous year question, but you can just correlate with it to the some extent, but it is directly related with the syllabus. Okay, then the next question was this C. You must be knowing that the question 1 and question 5 are compulsory, right? So even this question is amongst what? Compulsory. You cannot keep it as an option. Okay, the second question from the first was this skeleton in sponges. Okay, now this is the point that has been directly mentioned under this porifera. Okay, and even this previously, like this 19, 4, 16, 18, these are the questions of the Indian Forest Service. Okay, they have been asking you question about the spicules. Okay, and in the CSE they have asked about the general characters and classification of this porifera. So out of these general characters, this skeleton will be a smaller part, but Forest Service, Indian Forest Service, they have asked specifically about this skeleton of this sponges. Okay, the same kind of question has been there now in the CSE. Okay, a direct relation is there with the syllabus, and yes, this question has also previously been asked. Okay, see, many of the students just don't compare this CSE and IFS syllabus. Okay, they just think this IFS is a kind of very difficult thing, very different thing, and CSE is a syllabus is a kind of a different thing. Okay, if you just analyze both the syllabus now, you will get to know that they are 100% similar. Okay, although there is just a difference of mentioning 1 or 2 points, but they are 100% similar. Okay, mostly the question pattern is also kind of similar. Nowadays the thing is that the question paper pattern is varying. Okay, some of the questions from IFS are coming in the CSE, some of the questions from the CSE are coming in IFS. Okay, so technically there is no difference in between the IFS and CSE. So whenever you are referring this previous year question, it is always better to actually refer these even the previous year questions of IFS for CSE or CSE for IFS. Okay, both previous year questions will be useful for you. Okay, now let's go to the third question. That is, describe the different kinds of coral reef on the basis of their formation. Okay, there was a direct relation of this question from the syllabus, Cnidaria, coral reefs and their formation, and the questions were also already been asked like this in 2010, 13, 15 in the CSE. Specifically, they have been asking about this coral reefs. What are these coral reefs? Okay, and whatever this formation is there in the CSE, they have also asked about this coral reefs and their formation question. Okay, see, if your mic is making any kind of noise, you can just mute it. Okay, I will just mute all of you. If you have any query, you can just unmute yourself. So these were the questions.
even the formation of these coral reefs, this question has already been asked. Okay, in this 2015, same kind of question has been repeated here. Now there is a one thing which I wanted to mention you, which I want you to look at. Here in 2015, the question was saying, what are coral reefs and coral reefs? Okay, what are corals and coral reefs? This was the first part of question. Okay, this question was 15 marks, right? After this, there was a question which was asking, describe different types of coral reefs and their formation indicating different theories. This question that I have just I have given a red color to this question. Same question is there here. Describe the different kinds of coral reefs on the basis of their formation. Okay. Now here, if you consider, maybe this what are coral and coral reefs maybe for 5 marks, and this question is of 10 marks. So that's why when this UPSC has asked this question here, they have just divided this question in 2 parts, and they have asked this latter half part for 10 marks. Okay. Now many of you, while writing, what they will do, this is a common practice that is coming from this general studies, that is to give an introduction for every question that is there in our paper. Okay, for every question they will give you will try to give an introduction. Okay, but here you can see they are directly asking you different kinds of coral reefs. Okay, they are not expecting you to introduce what are coral reefs and what are corals. If they are expecting that, they would have placed this question for a 15 marks per question. अगर ये उनको एक्सपेक्ट होता कि डिटेल में आपको इंट्रोड्यूस करवाना है कोरल को और कोरल रीफ को, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होता 15 मार्क्स का, जिसमें इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी देयर, 5 मार्क्स विल बी देयर फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस कोरल्स एंड कोरल रीफ्स, देन 10 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, so you should also understand that whenever the UPSC is asking specific questions, at that time don't utilize more than 2 or 3 lines for introduction. Okay, इससे ज़्यादा introduction नहीं देना है, because you will already get very less space for writing this answer. ये आंसर लिखने के लिए पहले ही आपको कम जगह मिलेगी. Okay, तो unnecessary introduction मत लिखो. If you have a very solid points to write in this introduction, what you can do in the introduction, you can just give what are corals and what are coral reefs. Maybe maximum 4 lines. They are just definition kind of things in 2 lines, not more than that. Okay, then you should directly start with this different kinds of coral reefs, right? Then what will happen because of this? You will save a time, okay, in writing very particular answer, and this whatever the time you have saved here, that will be useful for the attempt for making 100% attempt. 100% अटेम्प्ट करने के लिए ऐसे जगह टाइम बचाना है हमें, जहाँ जरूरी नहीं है वहां पर इंट्रोडक्शन नहीं देना है. ओके, नाउ यू विल डेवलप दैट एबिलिटी. जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एबिलिटी आपको आ जाएगी. ठीक है. Then in this Indian Forest Service, they have already been asking this question about this coral reefs and formation directly, right? Formation of coral reefs, right? Then again, how these corals are formed. Then again, this coral reef formation. Okay, so this is the kind of a question which is repeatedly been asked, right? You can see from 2004, 5, 11, 16, 10, 13, 15. Okay, so this is the kind of relationship that it is repeatedly been asked. Okay. Then the next question was compulsory question is write a note on the general characters of Prototheria. Okay. Although it is not directly mentioned as such as a Prototheria, but it will come under this Mammalia, origin of mammals, general features of egg-laying mammals. Okay, egg-laying mammals में आएगा ये question. If you just study these egg-laying mammals, you will come to know that these are nothing but the Prototheria, right? So the questions on that were already been asked. Okay, like this write concise account of general features of Monotremata. Okay, like these Prototherians. Okay, they have already asked about the Prototheria, Metatheria, Eutheria. Okay, then they have also asked about these egg-laying mammals also. Although they were never asked only specifically about Prototheria, but they were actually kind of gave you a kind of hint that Prototheria are also important points. Like in 2009, 2012, although even in the 2019 IFS also they have asked about these egg-laying mammals. Okay. So these Prototheria are nothing but what egg-laying mammals. Okay. So although not specifically mentioned in the syllabus, but their synonyms can be compared. Okay. Prototheria are nothing but these egg-laying mammals. Okay. For this you will have to have multiple readings of your content. Okay. Many of times you may just keep this Prototheria
or you will just study as an egg laying mammals. Okay, egg laying mammals पूरा पता होगा आपको, पर आपको अगर ये पता नहीं होगा कि egg laying mammals are this Prototheria, this under this Monotremata, then it is of no use. Okay, इसके लिए सिर्फ multiple reading चाहिए, and you should also focus on this synonyms part. Okay, then this question was about this flight adaptations in birds. Okay, these are a kind of a direct question. Okay, Aves flight adaptation is there. It has also already been asked in CSE multiple times. Okay, so till this 2017, these are the CSE questions, right? In that they have already asked about this flight adaptation of flight. Okay, even this IFS also 2001, 2009, 2016, they have asked about the flight adaptation. Okay, so these were kind of frequently asked questions. Okay, then this is this 20 markers question. Now we start about this one of those you can say the questions which are in optional. Okay, you can select any these 3 out of these, right? So let's see one of those second question, that is the second A. With the help of label diagrams, describe the mouth parts of housefly, butterfly and honeybee. Okay, the source of this question is directly from the syllabus, like this Arthropoda, this mouth parts in insect. In that it is already mentioned mosquito, housefly, honeybee, sorry, butterfly, honeybees. Okay, so you don't need to do anything else other than this. Even if it is there in books, you should only do only these things, mouth parts of these only, right? Then the questions were like this. These were the questions of the CSE. Whenever I have not mentioned any IFS, just consider that it is of what? CSE. Okay, so these were the questions on the CSE. Like these different mouth parts in insects, write a note on their functional significance. Okay, here also mouth parts in insect, mouth parts in insect. Even the IFS also asking about these mouth parts in insects, right? So it is one of the kind of a question which has already been asked, mouth parts in honeybees, right? Then this is the second B. With the help of suitable diagrams, describe the stages of cycle of Nereis. Okay. Then the question was originating from these general features, life history of Nereis. Okay. Then there were questions like the general features of Nereis, right? Then there is question in IFS, what is metamerism? Describe the general features of Nereism. Okay. There were no question in CSE, civil service में कोई question directly नहीं पूछा था अभी तक, but it was already asked in IFS, so now the question has been coming from here. Okay. Now we cannot say the question has come here from IFS. Okay. The question is coming from the syllabus, not from the IFS, right? It is just the thing that earlier it wasn't asked in the CSE. Now it is asked. Okay. So now this is the benefit of even referring IFS previous year question. Okay. Now you will get to know that yes, this kind of questions are there on the Nereis. See, there are many students are there, na? So or many other people also think that we should only refer 5 years of papers of optional of zoology. Why I have made just 22 years of CSE and I have made almost 18 years of this IFS compilation, almost 40 years of this PYQ compilation. This is just useless or nonsense things. Okay, they see just go through the 5S, that would suffice. Okay, there is one argument which I put forward for them, that our subject is not a subject like this political science or social science or this geography or any other thing which will be depend on this current pattern. Okay, in the polity they will ask about only the current issues. Okay, this is not the case with ours. We may be asked question even from 2006, even from 2012 or even from 2002. The reason is our syllabus is a technical subject. Okay, what should be your aim of referring previous year question papers is that you should only look for the previous year question just to understand what kind of questions are there on this point of syllabus. जब आप syllabus पढ़ रहे होते हो तब आपका सिर्फ यही मोटो होना चाहिए कि उस point पे question कैसा आया है इससे पहले, whether it may be in the CSE or it may be in the IFS, it doesn't matter. It is of the zoology only. The exam conducting body is UPSC only. Okay, you should only look for the previous year question, whether it is coming from the CSE or IFS. Okay, and it doesn't matter whether that question is 20 years old or whether that question has been asked 22 years old or whether that question has been asked in the 2 years back. Okay, so I just completely disagree with these people's or students this argument that just refer 5 years question paper and you will know the pattern of the zoology. Okay, our paper doesn't have any pattern.
Okay, we may be asked questions from this any year from this 22 years or 18 years of IFS. Okay, so it is always advised to have an PYQ and go with this any question, previous year question on that point particular, right? Then let's see, this is the 2C. With the help of label diagrams, give an account of the larvae found in Asteroideae, Ophiouridae, Holothuroideae. Okay, although directly they were not directly mentioned in the syllabus, but they originate from this Echinodermata, feeding, respiration, locomotion and the larval forms. Okay, Echinodermata से ये origin होते. The questions were like this, already asked about this. Write down these larval forms of these echinoderms, larval forms of the echinoderms, right? See, you will see there are many questions, even from the CSE also, and even from this IFS also. There are this larval forms of Echinodermata has been repeatedly asked. Okay, even this 2014, 16, 10, 12, 8, 2, 2, 5, 6, 12, 17. Okay, so it is repeatedly been asked. Just you should know that these are the larval forms of this Echinodermata. Okay. There is also one thing, as it is mentioned in front of Echinodermata in larval forms. Okay. See, whenever you are studying this Echinodermata in the books, what should be the use of this lecture and what should be the use of previous year question? The use of this lecture also should be that whenever we are studying any point from this non-corders, okay, whenever you suppose you are drawing making notes from yourself, okay, by yourself, at that time don't go from this first page of Echinodermata book, these notes up to the last page. Okay, just find out the specific answers of the particular this point. Okay, you have been given this Echinodermata feeding, na? You will only look at the what are the feeding part. You will just neglect even the introduction part of this Echinodermata. सब कुछ भूलना है, सिर्फ फीडिंग में क्या है वही आप रेफर करेंगे. देन यू विल नो ओनली रेस्पिरेशन, ओनली लोकोमोशन, ओनली लार्वल फॉर्म. अभी इसके बाद इफ देयर आर एनी पॉइंट्स इन दैट बुक अपार्ट फ्रॉम दीज 4, you will not look at it. Okay, otherwise that Echinodermata chapter will only take you many days to complete. Okay, so that should be the aim of this lecture, that there are questions which are directly from this, mostly directly from this syllabus points mentioned. Okay, so understand. So this is about this 2C. Then we will go to the 3A, that is the describe the distribution, habitats of Rhynchocephalia. Write a note on crocodilian, lacertilian characters of Spinodon. Okay, the question was coming from this, originated from this Reptilia, status of Spinodon on Crocodilia. Okay, there were questions like these in the CSE and from the IFS also. Okay, like explain this Spinodon, crocodiles in animal kingdom, characteristic of this Rhynchocephalia, Crocodilia. Okay, so even this Rhynchocephalia, even in this IFS also they have been asking about this Rhynchocephalia, right? So whenever you are studying this point of Reptilia, you should go with these points first, right? So although kind of a direct question, right? Then the question is explain the origin of amphibia up to subclasses with the characters and examples. Okay. Then this is it comes from this point in the syllabus, that is the amphibia, origin of tetrapods, parental care, pedomorphosis, mostly from this origin of tetrapods, right? This explain the origin of this amphibia. The questions like these were like this, write an essay on fossil record of amphibians to explain their origin. Only one direct question which were similar like this asked in, you can look at this. A question similar to this has been asked in 2020. That is similar to what? Question which was asked in 2000. Now what will say the people who are saying just paper 5 years paper for this zoology? Yeah, significant. Okay. Now if you have just looked at this question even for once, that these were the kind of question well asked, you may have just thought in this, आपने ऐसा कुछ स्टडी किया होता अगर ये क्वेश्चन आपने एक बार भी देखा हुआ तो, अदरवाइज 5 years में तो कुछ भी नहीं मिलेगा आप ज्यादा, right? Then there is this, discuss the origin of, these are the questions which were not directly related with this. Okay, these were the only question which was kind of directly origin. There was also one question in 2002 that is asking about origin of tetrapod. Okay, in 2014 trace the origin of tetrapod. Okay, but direct origin of amphibia has only been asked in where? In this 2000. Okay. Next is, this is the 3C, that is with the label diagrams only.
Look at the way the CSE or the UPSC has asked this question. Okay, it is for 15 marks. They have asked about with the help of label diagrams only. Okay, explain the different larval stages in the life cycle of Fasciola hepatica. Okay, here also they are saying explain with the help of label diagrams only, and in bracket they are writing no description is required. Okay, so whatever you are writing, that should be mostly in diagrammatic format or in this flow chart of format. Okay, they don't want you to explain even that whatever this life cycle will be there. Okay, or the stages of life cycle will be there. They don't want you to just explain that thing, that this will come from humans to this, here from here. They don't want you to explain that in theory. Okay, they are saying there is one thing which I always told to my students, even for this biochemistry lectures, that whenever you are writing any cycle like Krebs cycle or glycolysis, okay, don't just write that entire cycle as such in the form of theory. Once you have written that diagrams, this cycle, the student used to just write, yes, from this citric acid cycle, so from the citric acid the isocytric will form, from isocytric this oxalosuccinate will form, from oxalosuccinate this alpha ketoglutarate, and then the succinyl coenzyme will form. That is just you are just wasting your time. Okay, by doing what? By doing just writing the things which are already there in your exam or which are already there in your answer sheet. Okay, examiner is wise. Okay, उसको पता है कि as आपने उसमें वहाँ पर डायग्राम्स में वो क्रेब्स साइकिल ड्रॉ किया है, तो आप उसको थ्योरी में एक्सप्लेन करना तो कोई बच्चा भी करेगा वहां से, ये इससे इसको ये मिला के ये बन जाएगा. ओके, ऐसी चीजें साइकिल्स में नहीं करना. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द स्पेसिफिक वे इन विच यू शुड जस्ट एक्सप्लेन दैट डायग्राम्स. ओके, व्हाट विल डू, उससे क्या होगा, ये जो साइकिल एक्सप्लेन के अलावा कुछ और पॉइंट है लाइक दिस रेगुलेशन ऑफ दिस क्रेब्स साइकिल जैसा पॉइंट, या फिर इनहिबिटर्स ऑफ दिस क्रेब्स साइकिल ऐसा कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आप थ्योरी में डाल सकते हो. एट दैट टाइम इट विल बी हेल्प यूजफुल फॉर यू टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स. अदरवाइज एवरीवन इज गोइंग टू ड्रॉ दिस साइकिल, everyone is going to explain that cycle in the theory, but that is why everyone is scoring only 50% of entire marks. Okay, 10 में से हर एक को 4, 3, 4, 5 ही मिल रहे. क्यों? यही कर रहे हैं सब. ये यूपीएससी ने अभी बता दिया, नो डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड. डिस्क्राइब मत करो उसको, जस्ट मेंशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस एंटायर डायग्राम्स और इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस with the support of any flow chart. Okay, अभी ये क्वेश्चन जिसको डायग्राम्स में ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है ना, उसको ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा होगा. हाउ टू एक्सप्लेन एन आंसर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. ओके, इट विल गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. ओके, बट मैं एक हमेशा मेरे जिस लेक्चर्स में एक बात बताता हूँ, कंसेप्ट डायग्राम का एक पॉइंट या फिर मिनी डायग्राम. ओके, ये डायग्राम कैसे होते हैं, यू कैन जस्ट almost draw a diagram for every theoretical points you are explaining. Okay, जो हर एक पॉइंट आप थियरी में एक्सप्लेन करते हैं ना, उसको कुछ डायग्राम्स के फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, एंड दैट क्वालिटी और वो जो हैबिट है वो आपको क्या करेगी, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू स्कोर मोर. क्योंकि जो थियरी में 4 लाइंस आप लिख रहे हैं, अगर वो डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहे हो आप, तो एग्जामिनर को वो जल्दी समझ जाता है कि दैट ही इज और शी इज नोइंग दिस आंसर, और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क मिलेंगे. आपका जो स्कोर होगा ना, वो 10 को अप्रोच करेगा आउट ऑफ 10, या फिर 15 को अप्रोच करेगा आउट ऑफ 15. ओके, अनलेस एंड अंटिल यू यूज सच कंसेप्ट डायग्राम्स और मिनी डायग्राम्स इन योर आंसर. ओके, तो यहाँ पर वो दे आर एक्सपेक्टिंग लाइक दिस, नो काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, ऑल्दो यू विल हैव टू इंक्लूड सम ऑफ दिस थ्योरी. ओके, 2 और 3 लाइन कहीं कहीं लिखना पड़ेगा, बट दे डोंट वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन, दे जस्ट वांट टू जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम्स इन डिटेल. राइट, द ओरिजिन वाज फ्रॉम दिस पॉइंट, लाइक द लाइफ हिस्ट्री ऑफ Fasciola. Then there questions like these will already been asked in this, even in this CSE also and the IFS also, like the general features and parasitic adaptation in Fasciola, this life history of Fasciola. Okay, life history of Fasciola, life history of Fasciola. Okay, it was one of the repeatedly we asked question. Okay, then this is the question that describe the various accessory respiratory organs of fishes with examples. Okay, this lecture is going to be last for a much longer time. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इस चीजें में, then you will have to sit for a longer time. ठीक है, because this is going to give you a kind of confidence also that whether you can approach this entire zoology yes or no. अगर वो हर एक क्वेश्चन if is originating directly from the syllabus, तो आप सोचेंगे that yes I can approach it. अगर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले that are not mentioned in anywhere in the syllabus,
then you will get tens also. Okay, so let's see what happens, whether there are direct questions are there or there are no direct questions are there. Let's see. Okay, so this is the question 4a. It is asking describe the various accessory respiratory organs of fishes with the examples, right? It is coming from this respiration. Now it is not directly been mentioned that give this respiratory organs of these fishes directly. Okay, although it can come from this comparative anatomy also. Okay, you can say of different these things of different these vertebrates, वहाँ से भी ये question को originate कर सकते हैं हम, right? But the questions like these were already been asked, like these respiratory structures in fishes. Okay, area respiration bony fishes. Okay, types of respiration fishes, right? So physiology of gill respiration fishes. Okay, so the question like these will ask, but all I will say that this is a kind of a difficult question is there. Okay, you will need a kind of a much deeper study also and thorough reading also. Okay, so that is the thing. These non-coordinates and coordinates questions are kind of difficult. Unless and until you approach those questions in a right way, it is going to be a difficult part. Okay, so let's see the the fourth B question, that is describe the respiratory organs and mechanism in respiration in unio. Okay, now you must be knowing this. What is this unio means? This unio just basically means this lamellidans. Okay, अगर आपको ये पता है lamellidans मतलब unio, दो ही आप इसका आंसर लिख सकते हो. That's why synonyms are very much important. Synonyms बहुत ही important है. Okay, so it comes directly from this mollusca, lamellidans. The question have already been asked like this. Okay, this explain the structure and functions of respiratory organs in lamellidans. इससे पहले lamellidans में पूछा था, अभी उसका synonym यूज करके unio पूछा है. Okay, how this UPSC plays with your this knowledge. Okay. They will ask next time they will ask the same question, but depending on the synonyms. Okay, so that's why you should focus on synonyms also. हर एक organism को, हर एक class को क्या कहते हैं, और right. Then this is a question like this: respiratory organs and mechanism of this different groups of. Here they have already asked on this mollusca entirely respiration. Okay, not only specifically lamellidans. Okay, but here is only one question where they have specifically asked you about this lamellidans respiration only, means unio respiration only. Okay, although I will say it is a kind of a easy question, because जब आप respiration करोगे मोलस्का का, तब आप lamellidans भी करोगे, पीला भी करोगे, सेपिया भी करोगे, right? तब आपको ये पता भी होना चाहिए कि lamellidans are also called as unio, right? Then the 4C is give an account of aortic arches in reptiles, birds and mammals. Okay, now this question is a kind of again a kind of difficult question होगा. अगर लिखना भी बोला तो भी इस questions को time लगेगा, unless and until you have practiced it. अगर जब तक आपने ये question का आंसर practice नहीं किया हो, तब तक ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा. इसका ओरिजिनेशन कहाँ है? कंपैरेटिव फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ वर्टिब्रेट, सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग हार्ट एंड एओर्टिक आर्चेस. ओके, ऐसा क्वेश्चन इससे पहले था लाइक दिस: कंपेयर द एओर्टिक आर्चेस ऑफ रेप्टाइल्स विद द बर्ड्स एंड नेटवर्क्स. द कंपेयर द एओर्टिक आर्चेस इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स विद द सूटेबल एग्जांपल. ओके, हियर दे हैव मेंशन व्हाट आर दोस डिफरेंट वर्टिब्रेट्स. ओके, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. इससे पहले एओर्टिक आर्चेस का क्वेश्चन आ गया है, राइट? इससे पहले क्या बोला है? डिफरेंट वर्टिब्रेट. ओके, पर अभी क्या बोला है उन्होंने? सीधा रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स बोला. ठीक है, these are nothing but what? Different vertebrates only, right? Just they have used the different synonym. Concept वही है. They have just asked question directly from the syllabus. Syllabus से ही questions है ना? Just अभी तक ये देखो, even till now there were no like questions were not like that. कोई सिलेबस का नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक भी, है ना? मोस्टली अभी ये जो सिनोनिम्स भी है वो भी क्या होते हैं, अगर ये सिनोनिम्स है उन्हीं, वो भी पढ़ते पढ़ते आपको आ ही जाता है बुक्स में कहीं ना कहीं नोट्स में. पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि दैट इज द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एन एंटायरली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है अभी तक. ओके, सो लेट्स सी नाउ मूव टू द नेक्स्ट 5A, द कंपल्सरी क्वेश्चंस ऑफ द सेकंड पार्ट, दैट इज द डिवीजन ऑफ बायोस्फीयर. हाउ इजी. ओके, कितना इजी है. बायोस्फीयर पहले ही हुआ है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोस्फीयर पहले ही पूछा है. ओके, सीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं था, पर आईएफएस में पूछा गया, राइट? क्वेश्चन का ओरिजिनेशन डायरेक्टली है. अगर आप इकोलॉजी में बायोस्फीयर, कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर करोगे, तो इन दैट यू विल ऑलवेज study this division of biosphere is there. What is the division of biosphere is there? Then this is the give an account of biological rhythm. Direct question, biological rhythms. Direct question पूछा है सिलेबस में ही, राइट? इससे पहले सीएससी में भी क्वेश्चंस है कुछ, आईएफएस में भी है, लाइक दिस गिव एन डिटेल अकाउंट ऑफ बायोलॉजिकल रिदम, ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो इसमें तो कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा. ओके, एंटायर में सी
और एक क्या सिग्निफिकेंस होना चाहिए इस लेक्चर का, that whenever suppose now you are studying these biological rhythms from this ethology, okay, now you will go for the first point, this biological rhythm, biological clock, tidal, seasonal and circadian rhythm. Now you will get to know that most of the questions will be like this from this biological rhythms are there, okay, tidal इसमें या फिर seasonal circadian rhythm में थोड़ा कम questions है, so at that time you will focus on these biological rhythms more. तो ये significance हो सकता है इस लेक्चर का कि how to just correlate this entire previous year questions with your studies, okay, अपने स्टडीज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कैसे बेनिफिट करना है ये आप कोरिलेट करना सीख सकते हो यहाँ पर, जिस पे ज्यादा जिस क्वेश्चंस पे या फिर जिस पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस है रिपीटेडली उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। एट द लास्ट मोमेंट जब लास्ट का एक वीक या फिर 2 वीक रहेगा तब रिवीजन करने वाले पॉइंट में ये पॉइंट सबसे पहले आएंगे ऐसे, जिस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। Then they see the 5C is there, phosphorus biogeochemical cycle are there. It is directly coming from this biogeochemical cycle from this ecology. Okay, there were multiple questions which were already asked. Okay, biogeochemical cycle बहुत बार पूछे गए. Okay, nitrogen cycle, carbon cycle, they all of them just come under this biogeochemical cycle. ठीक है, so they have asked about this year what is the difference. Here you can see the carbon cycle, nitrogen cycle. Okay, nitrogen cycle, right? The carbon cycle, okay, so but you will never see the phosphorus biogeochemical cycle. phosphorus biogeochemical cycle नहीं थी, but अभी क्या किया उन्होंने phosphorus biogeochemical cycle भी की. Okay, so this is also again one lesson for us, okay, कि only previous year questions ही हमेशा करना चाहिए या नहीं. Okay, what you should do that you should first read the previous year question points. जो previous year questions में आए वो पहले read करना चाहिए, उसको focus करना चाहिए. बट यू शुड नॉट एंटायरली लीव, कंप्लीटली लीव नहीं करना चाहिए. किसको? द क्वेश्चन, जिस पे क्वेश्चन कभी नहीं आया. अभी इस पे व्हेनेवर यू आर रेफरिंग दिस बायोजियोकेमिकल साइकिल व्हाट यू विल से, हमेशा कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल ही पढ़ाया ना, तो हम कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल ही करेंगे. वी विल नॉट डू दिस फॉस्फोरस साइकिल. ओके, बट दिस विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू टू स्कोर मैक्सिमम स्कोर करने के लिए नहीं आपको यूजफुल होगा. You will be able to just score, okay, on an average score करने के लिए अच्छा होगा. Okay, maybe more than on an average से score करेंगे आप ऐसे स्ट्रैटेजी से, but स्पोर्ट्स निकालने के लिए जो स्कोर चाहिए होगा ना आपका 300 प्लस 350 प्लस, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है that you should belong. Okay, ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिसपे आप बिलोंग करना चाहिए था, राइट. So whenever you are referring biogeochemical cycles, so biogeochemical cycles में जितने भी cycles है वो सब रेफर करना, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कुछ भी है वो भी. ठीक है. Now let's see 5D, ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्वेश्चन है, दैट इज द इकोलॉजी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का है. ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इससे पहले भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इवन इन दी CSE ऑल्सो और IFS में भी ऑल्सो, राइट. दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसा सिलेबस का पॉइंट है वही पूछा है, नथिंग चेंज, राइट. देन TM मतलब क्या, सिलेबस का ही पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में TM डायरेक्टली. इससे पहले भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, IFS में भी बहुत बार आ चुका है, तो वही सीधा TM आपको पूछा है. लिख लो आप. नाउ यू शुड राइट एंटायर दैट यू आर नोइंग अबाउट दिस TM, यू शुड राइट एवरीथिंग इन दिस 2 पेजेस. 10 मार्क्स के लिए 2 पेजेस होते हैं, तो 2 पेजेस में सब कुछ लिखना है आपको TM का. देन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 6A, दिस अबाउट दिस ऑप्शनल, दिस और में जो है ना उसका 6A, what are the uses of biotechnology in forensic science? The questions originally is from this forensic biotechnology. The question is पहले previously the CSE has asked questions about this forensic biotechnology in forensic biotechnology, right. This biotechnology is a vital tool in modern forensic science. Just 2015 में ही ये question आया था, right. Same question has been repeated. Okay, what are the uses of biotechnology in forensic science, right. So direct question and also depending on this previous year question. Then this 6B, describe the uses of remote sensing in sustainable development. Okay, directly given remote sensing in sustainable development, जैसे का जैसा सिलेबस में पॉइंट है वैसा ही क्वेश्चन भी है. Okay, now you will just describe it is asked previously in the CSE, what are the merits of remote sensing in sustainable development, describe this sustainable development क्या है. Okay, वही एक्सप्लेन किया, इससे पहले ही पूछा जाएगा. लास्टली इट हैज बीन आस्क्ड इन 2016 में पूछा गया है. Then this is the question about this, explain the principle of spectrophotometer, describe these following components, radiation source, phototube, prism. Okay,
ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली तो कभी नहीं आया दैट यू विल बी आस्किंग स्पेसिफिकली अबाउट व्हाट इज दिस प्रिज्म, व्हाट इज दिस फोटोट्यूब, व्हाट इज दिस ग्रेडेशन सोर्स, बट दे हैव आस्क्ड यू मल्टीपल टाइम्स अबाउट दिस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. अगर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अच्छा करोगे आप, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस सिलेबस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तब आपको ये सब समझ में आएगा. व्हाट इज दिस रेडिएशन सोर्स आर देयर, व्हाट आर दिस टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है, या फिर कोई मर्क्यूरी कैथोड, या फिर दिस मर्क्यूरी लैम्प क्या होता है. All of you will know once you have studied the spectrophotometer in detail, right? So direct question from the syllabus, and question has already been asked. Next thing, describe the names of any 4 diseases of silkworm and their causal agents, scientific, their only scientific names, and source of their infection, and what are the symptoms and management. Okay, now see, only sericulture is mentioned in the syllabus. Okay, sericulture ही mention किया है syllabus में. But if you look at the previous year question, then you will get to know that इससे पहले they have already asked you about various species of silkworm. They have already asked about label the diagram, show the stages of life history of mulberry silk, explain the various aspects of rearing techniques in sericulture, add a note on diseases of silkworm. बहुत बार आपको ये लगेगा कि whether to do the diseases of everything, सबके diseases करने हैं या नहीं. Okay, यूपीएससी has already been mentioned, जो पेस्ट ऑफ जब शुगर केन राइस ऑलरेडी मेंशन किया है, तो वही करना है. बाकी के सिल्कवर्म में अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होता हमारे पास 2019 का और 2012 का, तो हम सिल्कवर्म के ये जो डिसीजेस है वो नहीं करते सेरिकल्चर में. करते भी तो वेरी शॉर्ट में करते, पर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा समझ में आ गया कि यूपीएससी उसके थोड़ा और डेज में जा रही है, तब ही हम इसके डिसीजेस कर रहे हैं, तब भी हम डिसीज करेंगे इनके. ओके, 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, नेम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म और दिस राइट एन अकाउंट ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवर्म, देन डिसीजेस व्हिच कॉज दिस डैमेज टू सेरिकल्चर इंडस्ट्री. ओके, बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर 2019 में कोई क्वेश्चन आ गया तो 2020 में नहीं आएगा. हियर इज द एग्जांपल, सीएससी 2019 में सेम क्वेश्चन था, हियर इज 2020 में सेम क्वेश्चन है. ओके, ऐसे और भी कुछ एग्जांपल थे, इससे पहले हमने देखे थे. ओके, सो लास्ट ईयर, इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो अगर रेफर करोगे तो नेक्स्ट ईयर के एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस तो आपको आने वाले. ओके, सो डोंट लिव टुडे, ऐसा मत सोचना कि इस साल जो क्वेश्चन आए वो आने ही नहीं वाले, ऐसा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. राइट, नेक्स्ट थिंग इज 7B, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इंसेक्ट्स विद द एग्जांपल्स. द ओरिजिनेशन वाज डायरेक्टली फ्रॉम द सोशल बिहेवियर ऑफ अपिस, सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट, डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस ओनली. ये अगर पॉइंट स्टडी किया तो इसका आंसर आ ही जाएगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएससी में भी पूछे जा चुके, राइट, द सोशल बिहेवियर इन अपिस, बेनिफिशियल इंसेक्ट. ओके, सोशल बिहेवियर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है. राइट, लेट्स सी द 7C, डिस्क्राइब द क्रोमोसोम पेंटिंग एंड इट्स वर्सेटिलिटी इन मॉडर्न डायग्नोस्टिक. ओके, क्रोमोसोम पेंटिंग क्या है, इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द सिलेबस. इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स के जो सिलेबस है उसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, फिश एंड क्रोमोसोम पेंटिंग. वही क्वेश्चन सीएससी में इससे पहले पूछा था. They write down about this chromosome painting, this fish also. Fish मतलब ये सेम ही होता है, chromosome painting ही होता है. राइट, सो दैट इज दिस 2017 में भी क्वेश्चंस आ चुका है. राइट, इसका अगर अच्छी तरह से अगर एनालाइज कर रहे हो इस लेक्चर का, तो एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस आपको एट द लास्ट में बताऊंगा कि क्या हो. एनालाइज अगर कर रहे हो अच्छी तरह से ईयर देख के, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए. ओके, लेट्स सी वेदर यू कैन एबल टू टेल एट द एंड और नॉट. ओके, so this has question already been asked in 2015 and 2017. Right, then the next question about this student F test and student T test. Okay, directly from the syllabus, F test and T test सिर्फ वही पूछा है, T test और F test, इसके अंदर भी नहीं गए. अभी तक शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसा मिले थे जहां पर बहुत डीप में गए थे यूपीएससी, अदरवाइज जस्ट सिलेबस का ही पॉइंट उठा के पूछ रही है. राइट, द क्वेश्चन वेयर लाइक दिस स्टूडेंट T टेस्ट में भी क्वेश्चन है, F टेस्ट स्टूडेंट T टेस्ट में भी ये क्वेश्चन है सीएससी के. राइट, F टेस्ट में भी क्वेश्चन है ये सीएससी के. ओके, सेम क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क्ड, F टेस्ट, T टेस्ट, व्हाट इज दिस. इस बार भी वही पूछा है, व्हाट इज दिस F टेस्ट एंड T टेस्ट. देन दिस इज द 8B, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उस पे क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पहले भी था. राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ वैल्यूएबल टूल इन रिजॉल्विंग क्रिप्टिक स्पेसिस कॉम्प्लेक्सेस. अभी ये पॉइंट आपके आंसर में आना चाहिए यहाँ पर. डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो है ना क्रिप्टिक स्पेसिस कॉम्प्लेक्सेस, ये आपके आंसर में आना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट वैल्यूएबल टूल इन रिजॉल्विंग दिस क्रिप्टिक स्पेसिस कॉम्प्लेक्स. आपने अगर लिखा होगा ये आंसर में तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे.
राइट। अगर ये कब समझ में आएगा, 2015 का क्वेश्चन अगर आपने देखा तो, राइट। Then let's see the last question of this first paper, that is the 8C. Write scientific names of any three pests stored in grains and describe the nature of damage and management of this Scytophilus oryzae. Right. ये कहाँ से आया? Pest of rice, Scytophilus oryzae, directly mentioned in the syllabus. Again, right. The question like this were already asked in CSE also and IFS also. Scytophilus oryzae, right. Again, this measure of prevention and control, this pest of rice pest. Okay, so same ही question थे already repeatedly been asked. Okay, so this is about the first paper. Okay, अभी एक short में एक थोड़ा comments इस पे. If you look at this entire question paper and this the most feared part of you is this non-coordinates. Like non-coordinates पे आप बहुत ज़्यादा attention लेते हो. Okay, उसमें भी what you feared of this non-coordinates is the classification. The classification of two subclasses. Right. एक भी क्वेश्चन नहीं था that is directly asking you about the give the classification of any particular class. Okay, even यहाँ पर एक क्वेश्चन है that is the explain the origin of amphibia up to subclass. यहाँ पर को आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन उसका देना पड़ेगा, but that is only one question, that too amongst this 15. दो पेज के या फिर एक पेज के क्लासिफिकेशन करने के बाद अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहा है जो भी विदाउट दैट क्लासिफिकेशन अगर हो सकता है थोड़ा बहुत, तो क्लासिफिकेशन का इतना टेंशन लेना ही नहीं ना. आएगा भी तो क्या 15 या फिर 20 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम. You will not be asked to write down the only classification of suppose 2 or 3 classes. ऐसा नहीं होगा, है ना. तो सबसे पहली चीज just remove your fear of this non-coordinates and coordinates, और remove your fears of this classification. हम कोई selective भी classification करने वाले, छोड़ने तो नहीं वाले हम. कुछ selective जो easy करने वाले classification है ना, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, वही से कुछ प्रीवियसली हम सॉर्ट आउट करेंगे और वही क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना. उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ कुछ ना कुछ तो क्लासिफिकेशन हमने की है. अगर इसमें भी अगर कोई आ भी गया तो उसको डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन का कुछ बुरा नहीं मानना, उसको सीधा छोड़ देने का क्वेश्चन को, है ना. 500 का पेपर है, उसमें से अगर 15 या फिर 20 का एक क्वेश्चन भूल अगर छोड़ दिया तो भी चलेगा इसमें, है ना. 500 में से 500 स्कोर नहीं करना होता है किसी को, हर किसी को पॉसिबल ही नहीं होता हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. मे भी कब होगा, जब 2 साल का आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे तब होगा पॉसिबल. पर अगर ज्यादा टाइम देने से अगर एक क्वेश्चन छूट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप. तो क्लासिफिकेशन का टेंशन गया नॉन कोऑर्डिनेट्स का. अभी बाकी के जो क्वेश्चन अगर देखोगे, इफ यू जस्ट लुक एट द अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस नॉन कोऑर्डिनेट्स, देन यू विल सी दैट these are directly asked on the syllabus. Okay, larval forms, this respiration, okay, annelida में भी general features and life history of Nereis पे पूछा है. Okay, तो क्या होता है, whenever you refer these chapters annelida from these books ना, you will find lot of things in that books. Okay, तब आप कंफ्यूज करते हो, फिर टेंशन लेते हो, यार फिर इतने पॉइंट कैसे करना है. Okay, आपको वो बुक्स में देखना ही नहीं है पहले. You should first look at this syllabus, then you should look at this previous year question, then you should go only for that point from this book. वही पॉइंट रेफर करना है और जस्ट बुक को रख देना हो. ये तो अभी क्या करना है आपको, नॉन कोऑर्डिनेट्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर जो डायरेक्टली मेंशन है सिर्फ वही पॉइंट करना है. इससे भी अगर कुछ पॉइंट पे आपको डिफिकल्टी है ना, तो उस पॉइंट को छोड़ दो. नॉन कोऑर्डिनेट्स चैप्टर खत्म करने का सबसे अच्छा यही एक ही तरीका होता है कि जितना आपको आता है तो उतना पहले पढ़ लो. जो चीजें नहीं आती है, जो चीजें डिफिकल्ट है, अगर उसको पढ़ते रहे तो नॉन कोऑर्डिनेट्स खत्म ही नहीं होता कभी. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस नॉन कोऑर्डिनेट. कुछ डरने की बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस भी डायरेक्टली थे. जो ज्यादा हमें हमेशा डराता है नॉन कोऑर्डिनेट्स, उस पर अगर क्वेश्चन डायरेक्टली है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. इससे पहले भी डायरेक्टली ही होती है. सिर्फ हम टेंशन क्यों लेते हैं, क्योंकि नॉन कोऑर्डिनेट्स कभी किसी ने स्टडी किया नहीं होता. हर लोगों ने एक्सेप्ट दिस एमएससी जूलॉजी और बीएससी जूलॉजी स्टूडेंट छोड़ के, जो कि मे बी 5 to 10% ही होंगे ओवरऑल स्ट्रेंथ के, उनको छोड़ के ये कोई भी स्टडी नहीं करता नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स. और ये भी हमें पता है कि बीएससी और एमएससी में हम भी हमारे ग्रेजुएशन और पीजी में कितना अच्छा तरह से पढ़ाई करते हैं, है ना. तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना है नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स का. जस्ट सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी रीडिंग करना है एंटायर टॉपिक्स में से. ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पेपर 2. पेपर 2 मोस्टली ज्यादा feared topics नहीं है पेपर 2 में, राइट. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question that is about this compulsory 10 marks. What is the Wobble hypothesis? How does it explain degeneration of genetic code?
जीन स्ट्रक्चर फंक्शन या जेनेटिक कोड में मेंशन किया है, although it is not directly mentioned, but वोबल अभी हाउ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से कैसे बचाने को आएगा आपको, सिलेबस में तो वोबल हाइपोथेसिस मेंशन नहीं किया है, बट इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू विल फाइंड दिस वोबल हाइपोथेसिस एट 2 पॉइंट, सीएससी में भी पूछा गया है, आईएफएस में भी पूछा गया है. ओके, नाउ इट इज ऑलमोस्ट 2014 में या फिर 2012 में है, राइट. तो जो लोग बोलते हैं सिर्फ 5 ईयर्स को ही पढ़ो, तो वो यहाँ पर नहीं होगा काम, यहाँ नहीं काम करेगा. अल्दो 5 ईयर्स की अगर लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप करोगे तो मे बी 40-50% क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर सकोगे, पर 40-50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फायदा कुछ नहीं होने वाला है, आप पोस्ट नहीं निकलने वाले आपको, राइट. सो दिस इज द थिंग, जेनेटिक कोड, जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में से इसमें से आएगा ये वोबल हाइपोथेसिस. इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द वोबल हाइपोथेसिस, गिव इट्स सिग्निफिकेंस, कैरेक्टराइज विद सुटेबल एग्जांपल्स द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ दिस जेनेटिक कोड, that are the degeneracy, universality of genetic code, and add a note on this wobble hypothesis. Okay, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पर यूज आएगा. मे बी यहाँ जेनेटिक कोड में आप सिर्फ जेनेटिक कोड का स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे, पूरा ज्यादा ये डीजेनरेसी देखोगे, पर वोबल हाइपोथेसिस में भी आप छोड़ दोगे. पर अभी आपको समझ में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कि वोबल हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटायर जेनेटिक कोड का. Okay, तो सेम क्वेश्चन डायरेक्टली था, although we cannot say that it is directly, but it was directly from this previous year question. Completely unrelated था क्या? नहीं, unrelated नहीं था. जेनेटिक कोड अच्छी तरह से पढ़ा तो वोबल हाइपोथेसिस पढ़ना ही है, राइट. सो बूमरैंग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला. ओके, सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला क्वेश्चन सिलेबस का पॉइंट है डायरेक्टली, राइट. इससे पहले भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, राइट. ड्रोसोफिला ये ड्रोसोफिला सेक्स डिटरमिनेशन है ना, यहाँ पर भी ड्रोसोफिला सीएससी में भी आ चुका है और आईएफएस में भी आ चुका है, राइट. सो डायरेक्ट मेंशन इन द सिलेबस आल्सो, डायरेक्टली मेंशन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. देन दिस इज डिफरेंशिएट बिटवीन सिम्पैट्रिक एंड पैरापेट्रिक स्पेसिएशन विद द सुटेबल एग्जांपल. इवोल्यूशन इस चैप्टर में से आए, अगर देखोगे तो सिर्फ स्पेसिएशन मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, पर इसमें इसका एक्चुअल लिखना क्या है. तो जब आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो अब आपको ये भी समझ में आएगा कि स्पेसिएशन में लिखना क्या होता है. सिम्पैट्रिक एंड एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ओके, मेथड्स ऑफ स्पेसिएशन, वेरियस आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, ब्रीफ नोट ऑन टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ स्पेसिएशन. ओके, सो अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम किसको डिनोट कर रहे हैं? सिम्पैट्रिक और पैरापेट्रिक स्पेसिएशन का पार्ट है, जो आप कभी भी नहीं छोड़ सकते. तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको इवोल्यूशन में स्पेसिएशन पढ़ना है तो बाकी छोड़ो, सिम्पैट्रिक और पैरापेट्रिक स्पेसिएशन पहले पढ़ो, तो मोस्टली चांसेस है कि आपको उसी पे क्वेश्चन आएगा, कि बहुत बार पूछा जा चुका है सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक, सॉरी पैरापेट्रिक. नेक्स्ट थिंग, दिस लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंपलसरी, दैट इज डिस्क्राइब द ओरिजिन कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. क्या ओरिजिन कोड है? द क्वेश्चन ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. इससे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन इसका ये था, दैट इज ऑफ 2017 आईएफएस और 2019 आईएफएस में पूछा गया था कि डायरेक्ट what are this इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या है. एग्जैक्टली मैचिंग, इसके जैसा मैचिंग क्वेश्चन था 2017 में. ये भी क्वेश्चन थोड़े बहुत सिमिलर है. फिर राइट अ नोट ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें यही आएगा सारा ओरिजिन ऑफ कोड. पर अगर सिर्फ कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है तो 2017 का आईएफएस का क्वेश्चन देखो. यहाँ पर भी देखो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये सब वही है, राइट. ICZN, ठीक है, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, राइट. सो इट वाज directly mentioned in the syllabus also and directly given in this previous year questions also. Okay, so boomerang question नहीं है. Then this is the 20 marks question, that is the draw an overview of eukaryotic cell cycle. Eukaryotic cell cycle का overview करना है. Describe the role of cyclins in the regulation of cell cycle. और cyclin का role explain करना है ना. तो इससे पहले in the CSE only 2008, 12, 15, 18, 19 में cell cycle regulation तो fully explain करने के लिए बोला है. But they have never asked specifically about these cyclins. Cyclins को ज़्यादा important नहीं दिया था किसी ने भी. Okay. Whenever I taught this cyclin in my cell biology lectures, okay, at that I told my students that this cyclin is going to be one of most important. Okay. और ये मत point छोड़ो, ऐसा मत छोड़ना नहीं है, ऐसा मैं उनको बोल रहा था. Same वही cyclin का वही point exactly for this cell cycle regulation के लिए एग्जाम को आ गया. राइट. नाउ इफ अगर ये साइक्लिंग के लिए मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है,
मैंने डायग्राम्स दिखाई है, साइक्लिन क्या करता है ना, CDK क्या होता है, सब कुछ एकदम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको आएगा तो मुझे ये गारंटी है कि आपको इसमें 20 में से आपका स्कोर 20 को ही अप्रोच करेगा, 18, 16, बिकॉज इसमें हमने बहुत अच्छी तरह से डायग्राम यूज की है साइक्लिन की, राइट। ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें, ठीक है। तो अल्दो सिर्फ सेल साइकिल रेगुलेशन ही मेंशन था सिलेबस में, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सेल साइकिल रेगुलेशन जैसा मेंशन हुआ है, साइक्लिन डायरेक्टली मेंशन था नहीं, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ थोड़ा डीपर क्वेश्चन है, ओके। उसके लिए हमें अच्छी रीडिंग चाहिए। वैसे मेरे में नोट्स में ऑलरेडी ये पॉइंट है, राइट। देन दिस इज द सेकंड बी, व्हाट इज ट्रांसजेनेसिस, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। जीन स्ट्रक्चर में जेनेटिक्स में पार्ट है, ओके। ट्रांसजेनेसिस ट्रांसजेनिक में भी आ सकता है, वहां पर भी जीन ट्रांसफर पेपर 1 में भी आ सकता है, ओके। तो इसको कुछ डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चन नहीं थे इससे पहले, ट्रांसजेनेसिस कभी भी नहीं पूछा था, ओके। ये भी क्वेश्चन ट्रांसजेनिक एनिमल पेपर 1 का ही है शायद, राइट। तो ट्रांसजेनेसिस कभी नहीं पूछा था, तो इसके राइट नाउ ये हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन था कि कभी इससे पहले कभी भी नहीं आया था ट्रांसजेनेसिस डायरेक्टली। बट काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो हमने पढ़ी है पेपर 1 में ही, राइट। तो उसके ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये क्वेश्चन बोल सकते हैं ट्रांसजेनेसिस में। ट्रांसजेनेसिस में क्या होने वाला, जीन ही ट्रांसफर होने वाला है ना, अल्टीमेटली एनिमल्स ही प्रोड्यूस करोगे, ओके। सो बट पेपर 2 में कभी ऐसा नहीं डायरेक्टली पूछा था ये, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट न्यूअर क्वेश्चन। Then this define the paleontology, discuss the chronological order of elephant evolution. Elephant evolution की chronology पूछिए, okay. सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन evolution of elephant using fossil data, right. इससे पहले CSC में 2015 में था और IFS में 2003 में था evolution elephant। यहाँ पर CSC में पूछा गया कि मॉडर्न डे एलिफेंट कैसे ओरिजिनेट हुआ वो बताओ, तो although directly mentioned in this syllabus, also one question at least is there in the CSC, ठीक है। सो डिफिकल्ट तो नहीं होगा क्योंकि इवोल्यूशन अगर आप स्टडी करोगे एलिफेंट तो कोई आंसर दे सकोगे। देन दिस इज द थर्ड ए, डिफाइन द म्यूटेशन, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन के टाइप्स, कॉजेस एंड एप्लीकेशन। CSC में भी क्वेश्चन आ चुका है, IFS में भी क्वेश्चन आ चुका है, लाइक दिस पॉइंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन। सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है म्यूटेशंस एंड म्यूटाजेनेसिस, ओके। सब जगह म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशन, नॉन पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, तो सब तरह के म्यूटेशंस ऑलरेडी दिए चुके हैं, राइट। जो वो पार्ट है जेनेटिक्स का, डायरेक्ट क्वेश्चन इन काइंड ऑफ इजी ही बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस में भी मेंशन है और CYQ में भी मेंशन। देन दिस इज द न्यूक्लियोसोम, सेल साइकिल का, एक्सप्लेन द फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ओके। न्यूक्लियोसोम भी मैंने मेरे नोट्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है ना। 2 पेजेस तो सिर्फ डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए दिए थे मैं, ये क्रोमोसोम एक्सप्लेन करने के लिए। न्यूक्लियोसोम का ये स्ट्रक्चर बताया था, है ना, 8 यूनिट वाला, ये DNA उसको डबल एनवलप कर 2 बार इसको राउंड मारता है, राइट। सब उस नोट्स में दिया था, राइट। सेल बायोलॉजी, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में ये पॉइंट आएगा। इससे पहले व्हाट इज C वैल्यू पैराडॉक्स, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन विद एम्फेसिस ऑन न्यूक्लियोसोम, सिर्फ यही पॉइंट था। बट एज सच न्यूक्लियोसोम के लिए कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्रोमोसोम को क्वेश्चन कभी नहीं पूछा था ऐसा। न्यूक्लियोसोम को पहले फोकस, उसके बाद फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ओके। पूछा था तो वो काइंड ऑफ दिस इज काइंड ऑफ अनरिलेटेड क्वेश्चन, पर थोड़ा बहुत क्रोमोसोम न्यूक्लियोसोम यहाँ पर पूछा गया है, ओके, 2014 में। पर इससे पहले कोई क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली आया नहीं था, राइट। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज RAPD, RAPD डायरेक्टली मेंशन्ड है, RFLP RAPD इन जेनेटिक्स में। गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल मेथड्स ऑफ मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, इससे पहले इसका क्वेश्चन नहीं है था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है ऐसा जिस इससे पहले कभी भी मेंशन नहीं किया हुआ है सिलेबस में, राइट। देन दिस इज द हार्डी-विनबर्ग लॉ, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या है, डायरेक्टली मेंशन है इवोल्यूशन के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चंस पहले ही पूछे जा चुके हैं इन CSC आल्सो एंड IFS आल्सो, ओके, डायरेक्टली मेंशन है, तो इसको कुछ डिफिकल्टी होगा नहीं आपको पास, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ड्रॉ एन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्कस द रोल ऑफ लिपिड्स इन द रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ओके। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का इससे पहले क्वेश्चन थोड़ा मेंशन है, कहीं पर दिया हुआ है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बताओ कहां पर है, ओके। ये देखो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, एक ही बार 2019 में पूछा गया था डायरेक्टली मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी का।
इसका नोट्स भी ज्यादा अवेलेबल नहीं, पर मेरे नोट्स में मैंने आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली 1 पेजेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पे नोट्स। वहां पर 3 फैक्टर दिए थे, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, टेम्परेचर, तो वही आपको लिख के आना था अलॉन्ग विद द डायग्राम विच आई हैव गिवन। एक ही पेज का नोट्स था वो, उतना ही आपको सपोर्टिंग में लिख के आते इस एक पेज पे अलॉन्ग विद दिस अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो भी आपका स्कोर मैक्सिमम 15 को अप्रोच करता। ठीक है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता था, राइट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर तो मैंने मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे तो इतना कंटेंट है कि हम पूरा पेपर उसी पे लिख सकते हैं, राइट। सो नॉट अ बूमरैंग क्वेश्चन, इज अ काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन। देन सी द एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कस द डिफरेंट ग्रेड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी करके क्वेश्चन मेंशन है, इसका डिटेल में क्वेश्चन नहीं था, तो similar like this question, binomial system of classification, molecular taxonomy, taxonomic hierarchy, explain this biodiversity, है ना। ये क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी में आना चाहिए था, पर पता नहीं इसमें क्यों डाल दिया है, क्यों डाल दिया है, विद बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूलर एंड टैक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी का कुछ ना कुछ रिलेशन है, राइट। दैट इज इन दिस पार्ट ऑफ सिस्टेमैटिक्स में, उस रिलेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर डाला हुआ है, उसका एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन करना है और उसका ग्रेड्स क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ये काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हो, है ना, क्योंकि हम पेपर 2 में इतना अच्छा नहीं कर सकते बायोडाइवर्सिटी में, क्या क्या पढ़ना है। पेपर 1 में इकोलॉजी में तो हमने अच्छा करा ही है, वही कंटेंट इधर डाल सकते हैं ना, वही कंटेंट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 5A, डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में इम्यूनोग्लोबिन, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबिन पूछते हैं, फंक्शंस, स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज ड्रॉ टिपिकल न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल, डिस्क्राइब द आयोनिक बेसिस फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ओके, सीएससी में भी क्वेश्चन इसके जैसे पूछे जा चुके हैं, एक्सप्लेन दिस प्रोसेस ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ओके, हाउ दिस नर्व इम्पल्स साइनेप्स इज ट्रांसफर्ड, ओके। बट डायरेक्टली ऐसा नहीं कभी पूछा कि आयोनिक बेसिस बताओ, ओके, व्हाट इज द आयोनिक बेसिस ऑफ दिस ट्रांसमिशन। बट मेरे नोट्स में मैंने दो पेजेस पे दिया हुआ है आयोनिक बेसिस मेंशन करने के लिए, 2 डायग्राम मेंशन किए, माइलिनेटेड फाइबर में और नॉन माइलिनेटेड फाइबर में कैसे सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है उसका यूज करके कैसे ये इम्पल्स ट्रांसफर होता है, वहां पर मैंने मेंशन किया होता है। वही पार्ट आपको एक्सप्लेन करना था इस आंसर में। ओके, इससे पहले टिपिकल न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल ड्रॉ करो और उसके बाद ये आयोनिक बेसिस दे दो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का कंपोजिशन भी नोट्स में था, मेरे डिटेल में दिया हुआ। मेरे नोट्स में क्या नहीं था, ये नहीं था, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। अभी ये तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कभी नहीं पूछा, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन कहाँ पूछते यार, कौन पूछा तो गया है, तो मोस्टली अगर मे बी पॉसिबल हुआ तो शायद पेपर 1 में एट द एंड जब ग्लैंड्स हम स्टडी करेंगे तब शायद इसका मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे, बट मुझे तो नहीं लगता वहां पर भी स्टडी करेंगे। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो लेस लाइकली वी आर एबल टू अटेम्प्ट। तो ऐसा होगा ही, ये 10 वाले क्वेश्चन में तो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, इससे कुछ टेंशन नहीं लेना है, ये इसी के लिए दिए हुए थे, है ना। कंपलसरी क्वेश्चन 10-10 मार्क के इसके लिए ही दिए हुए थे कि वो दीज आर द टफेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन होते हैं। उसमें हर एक पेपर में एक क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी कुछ डरने का नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देने का, बाकी का जो अटेम्प्ट है वो अच्छा देने का है ना। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करने वाले, कॉम्पोजिशन, कंट्रोल, फंक्शंस। ओके, फंक्शन देखेंगे सलाइवा के, टाइप्स एंड फंक्शन देखेंगे। ओके, सलाइवरी ग्लैंड, दिस रोल देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड का, लीवर का, सिक्रीशन कैसे करते हैं, इस मैकेनिज्म पे कोई नहीं जाएगा, राइट। तो आपको नहीं आएगा तो मोस्टली बाकी लोगों को भी नहीं आने वाला है। ठीक है, सो दिस वे दी क्वेश्चन काइंड ऑफ हाफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते थे अच्छी तरह से, हाफ क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज द गिव अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सुअल फेनोटाइप ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मैमल्स। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ, जिसके पास हमारे यहाँ कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले एक था इसी पेपर 2 में, अभी ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, जिसके पास हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं था, तो इसका आंसर भी लिखना काइंड ऑफ डिफिकल्ट होगा, है ना, फ्रॉम दिस डेवलपमेंट बायोलॉजी से, है ना। तो क्वेश्चन आएंगे ही ऐसे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, छोड़ दो, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना 10 मार्क से, कोई टेंशन नहीं। बाकी जो पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी लेने वाले उनको तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले जो उनको आते ही नहीं है ना। एटलीस्ट हमें जो बाकी के 95% क्वेश्चन है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं और वो हमें एग्जैक्टली पता है कि उसका कंटेंट क्या है। बाकी लोगों का जो जीएस करने वाले उनका तो वही वो नहीं होता,
उनको हर एक क्वेश्चन का कंटेंट एग्जैक्टली नहीं पता होता। हर 100 स्टूडेंट या फिर 1000 स्टूडेंट्स 1000 तरीके से एक ही आंसर दे सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का या फिर हिस्ट्री का या फिर किसी सोशियोलॉजी का। तो इसका आपको पता है, अगर आपने ऐसे कुछ 5% क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो बाकी के 95% का एग्जैक्ट कंटेंट आपको पता है ना? और वही अच्छा करना है, ऐसे किसी पॉइंट पे स्टक मत रहो सिलेबस पे, ये इसका आंसर चाहिए ही मुझे, ऐसा मत सोचो, आगे बढ़ो, मैक्सिमम सिलेबस कवर करो आपका जूलॉजी का, तब आप ये ऐसे क्वेश्चन है वो छोड़ के भी अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, कुछ आईएफएस ऑफिसर के इंटरव्यू देखोगे यूट्यूब पे, तो उन्होंने तो पूरा क्लासिफिकेशन साइड में रख दिया है, फिर भी वो आईएफएस ऑफिसर है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, कैल्शियम इज एन इनिशिएटर ऑफ कॉर्टिकल। वो क्यों होते हैं आईएएस ऑफिसर या फिर आईएफएस ऑफिसर, कुछ पोर्शन छोड़ के भी? वो क्या करता है, जितना मिला है ना कंटेंट, अगर कोई नोट्स दे रहा है, जितना नोट्स दिया है ना उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं। जो नहीं मिला है ना, ठीक है रहने दे, उसके पीछे मैंने नहीं दौड़ूंगा, वी विल नॉट गो behind those points on which we don't have any kind of notes. Okay, whatever notes we have, they just revise that in multiple times, और उस पे जब क्वेश्चन आता है ना, then they just ask a perfect answer on that point. उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली उनका आंसर का स्कोर बढ़ जाता है। और अगेन थिंक, सी कुछ स्टूडेंट है मेरे कोर्स में भी, वो अननेसेसरी टेंशन देते हैं कि लेते भी है और देते भी है कि सर, मतलब सर, सी ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स बैक इन लाइक दिस इन नवंबर। ओके, सो 6 महीने तो कम से कम लगने ही वाले थे। ओके, इस एंटायर कोर्स को तो मई तक तो कोर्स जाने ही वाला है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स टेंशन लेते हैं कि सर, या फिर टेंशन देती भी है कि सर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। सी द थिंग इज दैट इफ यू वांट दिस क्वालिटी नोट्स ना, तो टाइम लगेगा, पर सिर्फ आपको ये करना है कि जब भी मैं नोट्स दूं, जब भी मैं लेक्चर दूं, तब अटेंड करो उसी 2 घंटे के लिए। जब भी नोट्स आएंगे तब रीड करो, वो 2-4 दिन या फिर 5-6 दिन। और बाकी के टाइम में ये टेंशन मत लो कि नहीं आया है, कब आने वाला है, नहीं आया है, कब आने वाला है ना। मैं ऑलमोस्ट, इफ यू जस्ट सी, आई जस्ट मेक, आई सेंड मैसेजेस राइट फ्रॉम दिस 3 o'clock ऑल्सो, 4 o'clock ऑल्सो। हर रोज मैं करके आपका जो एंटायर टास्क है कंप्लीट कर रहा हूँ धीरे धीरे है ना। पूरा टास्क सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट होने वाला है आपको, है। जो लोगों ने ये जिस डेवलपमेंट, जिस फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी किया होगा ना, उन लोगों को पता है कि सिर्फ वो 2 ही चैप्टर में से ऑलमोस्ट 135 मार्क्स का अटेम्प्ट आप कर सकते थे इसी साल पेपर 2 में। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, एविडेंस के साथ बताऊंगा, है ना, ऐसा नहीं कि जस्ट बोल रहा हूँ, राइट। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज द कैल्शियम इज एन इनिशिएटर ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स रिएक्शन। ये तो अभी यूजुअली कहीं नहीं पढ़ोगे आप, अगर फर्टिलाइजेशन डिटेल में पढ़ोगे तब आपको ये कॉर्टिकल ग्रैन्युल रिएक्शन आ जाएगा। बट अदरवाइज इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं है, तो काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका आज के पेपर का, जिस पे मोस्टली आपको कंटेंट नहीं मिला होगा कहीं पर भी, पर टेंशन नहीं लेना है। ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन होंगे सिलेबस में, वो किसी को भी नहीं आएंगे, है ना। फर्टिलाइजेशन इतना डिटेल में जो स्टडी करेगा उसको ही समझेगा कि ये कॉर्टिकल ग्रैन्युल रिएक्शन ये फर्टिलाइजेशन का पॉइंट है, तो भी वही कोई कुछ तो भी लिख के आएगा वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज 6A, डिस्क्राइब द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। डिस्क्राइब द थियरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। देखिए, अभी ये जो एटीपी सिंथेसिस हमने देखा, पर उसके बहुत सारे थियरीज हम यूजुअली में स्टडी नहीं करता। मैंने भी मेरे बायोकेमिस्ट्री में थियरीज पूरे नहीं दिए एटीपी सिंथेसिस के, है। तो आएगा हर एक पॉइंट, तो ऐसा भी नहीं होगा ना कि मेरे नोट्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा, कुछ ना कुछ लैकिंग भी होगा ही ऑब्वियसली। So it is usually come from this oxidative phosphorylation and ATP, right? इसके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पे इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। एटीपी भी आ चुके हैं, बट थियरीज एग्जैक्टली थियरीज कभी नहीं पूछी। ओके, हाइपोथेसिस पूछे एटीपी सिंथेसिस के अलग अलग, बट एग्जैक्टली थियरीज नहीं पूछा कभी। ठीक है, सो काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, राइट। नेक्स्ट थिंग इज 6B, व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन का जनरल मैकेनिज्म। डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक पाथवे फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोएगुलेशन मेंशन है सिलेबस में, क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं। सो आई विल से इट इज अ काइंड ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन है। आपके पास वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के पाथवे भी है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट आर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, क्या है। डिस्कस आइसोलेशन, डिफरेंशिएशन, थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। उसका डेवलपमेंट पेपर 2 में है, ये डायरेक्टली स्टेम सेल से ओरिजिन होता हुआ। इसके जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, दैट इज व्हाट आर द स्टेम सेल्स, ओके, totipotent, multipotent cells, explain the stem cells, okay, clinical applications of stem cells, okay, but directly discuss isolation, differentiation, therapeutic application of embryonic cells exactly पूछा है अभी,
है ना। तो आपको स्टेम सेल्स बहुत ही अच्छा, अगर आपने स्टडी किया तो आप इसका आंसर दे सकोगे। मैं बोलूंगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अल्दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे नहीं थे, पर स्टेम सेल्स अच्छा करोगे तो यही पॉइंट करोगे ना, आइसोलेशन, डिफरेंशिएशन, है ना। तो मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन दिस इज द एनलिस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या सोर्सेस है? डिस्क्राइब द मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल ऑलरेडी मेंशन है सिलेबस में, इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं सीएससी और आईएफएस में भी। तो काइंड ऑफ इसका क्वेश्चन डिटेल डायग्राम भी मैंने दिया हुआ है अलोंग विद दिस, इसके जो मैकेनिज्म है वो भी। तो काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन ये। देन दिस इज द ग्लाइकोलिसिस इज कंसिडर्ड एज मेटाबॉलिक हब। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस से मेटाबॉलिक हब, बेसिकली इस क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन क्या था कि ग्लाइकोलिसिस से आपको क्या क्या हाई एनर्जी कंपाउंड मिलता है, या फिर और कौन से इंटरमीडिएट्स मिलते हैं इस ग्लाइकोलिसिस से, कि जो और किसी साइकिल्स में भी यूजफुल होते हैं। ये मैंने मेरे बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में नहीं मेंशन किया था, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्रेब्स साइकिल एज ए मेटाबॉलिक हब आ जाएगा मे बी, क्योंकि क्रेब्स साइकिल का बहुत सारे ये किया है, पर ये दिस इज अ काइंड ऑफ, अल्दो कहीं और भी ऐसा डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं किया होगा हमने कि एज अ ग्लाइकोलिसिस एज अ मेटाबॉलिक हब बताओ। ठीक है, तो आएंगे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ मेरे नोट्स में भी नहीं होगा, राइट। इसके जैसे ग्लाइकोलिसिस जैसे सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, क्या है? सॉरी, एक्सप्लेन द थायरोक्सिन रेगुलेशन। मेटामॉर्फोसिस में क्या है? रोल ऑफ थायरोक्सिन इन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है, क्वेश्चन भी इससे पहले पूछे जा चुके हैं। तो काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और इजी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट इन डिफाइंड प्रोग्राम सेल डेथ क्या है? एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अपोप्टोसिस ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सेल डेथ में जो सिलेबस का पॉइंट है डायरेक्टली मेंशन, वहां से ही इसका ओरिजिन हुआ है, राइट। डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ एजिंग, सेलुलर डेथ, सेल डेथ, बहुत बार पूछा जा चुका है। अपोप्टोसिस क्या है? ठीक है, तो काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन। देन दे वर आस्किंग अबाउट दिस, व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? डिस्क्राइब द टाइप एंड बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन, देखो फैट सोल्यूबल विटामिन पूछा 2006 में, उसके बाद पूछा 2015 में, उसके बाद पूछा 2016 में। कभी कभी फिर वो वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछते, वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछा 2014 में, फिर वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछा 2017 में। तो ऐसी चीज है कि फैट सोल्यूबल और विटामिन में सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन है, फैट सोल्यूबल या फिर वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछेंगे आपको, अलॉन्ग विद सम ऑफ दिस क्वेश्चन। विटामिन बी क्या है, विटामिन डी क्या है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या है, एंटी विटामिन क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, राइट। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, पॉइंट्स क्या है, ये विटामिन, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन। अगर इस बार फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, तो मोस्ट लाइकली अगले साल क्या आएगा, वाटर सोल्यूबल। ऐसा भी नहीं है, okay? यहाँ पर देखो, पर 2015 में फैट सोल्यूबल था, तो उसके बाद फैट सोल्यूबल ही है 16 में, फैट सोल्यूबल विटामिन, यहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि वाटर सोल्यूबल आ जाए नेक्स्ट ईयर, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक्सप्लेन करने को तो बोला है, बट उसका डिटर्मिनेशन जो है, डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जीएफआर रेट डिटरमाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, वो इक्वेशन यहाँ पर एक्सपेक्ट थी, वहां पर कैसे डिटरमाइन करें वो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, पर मेरे नोट्स में मैंने स्पेसिफिकली दिया है वो जो इक्वेशन है ना, वो that this could be one of the important point, GFR rate का डिटर्मिनेशन। सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो इससे पहले पूछा गया था इन CSE 2015, GFR रेट भी पूछा गया था इससे पहले 2015, पर कभी हमारे पास वो इक्वेशन हमने नहीं देखा था, पर अभी वो इक्वेशन भी अच्छी तरह से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिलेबस में सिर्फ नेफ्रॉन और रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन मेंशन है, डायरेक्टली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेंशन नहीं है। ठीक है, सो दिस वर द 8C। सो ये हो गए ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अगर आप सोचोगे सिर्फ 3 क्वेश्चंस है इस एंटायर इसमें, दिस पेपर्स में, ये एक, ये 2, दूसरा ये, और ये एक और क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला, जिसके ऊपर इससे पहले क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, पर वो सिलेबस में कहीं तो भी मेंशन है ना। ये आरएपीडी क्वेश्चन सिलेबस में मेंशन है, इससे पहले पूछा नहीं गया था, है ना, पर सिलेबस में मेंशन है। ये जो है सेक्सुअल फेनोटाइप या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये तो इसका रिलेवेंस कहीं से भी नहीं लग रहा। तो ऐसा एक क्वेश्चन है तो जो ऑलमोस्ट आप सिलेबस में कहीं पर पर्टिकुलरली नहीं स्टडी कर सकते। ओके, कॉर्टिकल ग्रैनुलर रिएक्शन भी फर्टिलाइजेशन को ही कैसे तो भी इसको रिलेशन लगा रहे हैं हम, बट ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। तो ऑलमोस्ट ये 10 मार्क, ये 10 मार्क्स, और वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था,
एंटायरली 15 मार्क्स, तो 35 मार्क्स। तो ऐसा कंसिडर कर लो कि ये 35 मार्क्स आउट ऑफ 500। ऐसा तो डिफिकल्ट किसी भी पेपर में आता है, इससे ज्यादा ही आता है। इस बार यू शुड आस्क द एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स ऑफ दिस ईयर, इस बार जो एंथ्रोपोलॉजी दिया है ना, उनको पूछो कि क्वेश्चन पेपर कैसा है उनका, और फिर देखो वो क्या बोलते हैं। तो 35 क्वेश्चन, वो भी डिफिकल्ट। और ये भी क्या हो सकता है, व्हेन यू विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ जूलॉजी, जब आपका अच्छी तरह से हो जाए, तो ये जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वो भी थोड़ा बहुत आप 35 में से 5-10 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दो। अदरवाइज ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि 500 में से 500 अटेम्प्ट कर ही सकोगे आप। पर दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ गुड रेशियो, 90 के ऊपर, 90% के आसपास है। बहुत अच्छा रेशियो है किसी भी ऑप्शनल के लिए। अगर 90 to 95% आपको अटेम्प्ट कर ही सक रहे हो आप, तो इट्स अ गुड रेशियो ना। तो ये सिग्निफिकेंस है जूलॉजी का कि क्वेश्चन, और बाकी के भी क्वेश्चन आप देख रहे हो तो दीज आर काइंड ऑफ सिलेबस में ही मेंशन है ना। ऐसे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है जो वी कैन से दैट अगर इसके लिए बहुत ज्यादा हमें डीपर जाना पड़ेगा। सब जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तब में भी ऐसे क्वेश्चन भी, इसके भी क्वेश्चन हमें आंसर आ जाए तब, अभी के लिए तो नहीं आएगा। बट वो ये भी 90 to 95% रेशियो अच्छा ही है। अगर ये जो 90% भी अगर आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो, इस 10% के पीछे मत जाओ जो डिफिकल्ट है, ये 90% अच्छा अटेम्प्ट करो, इसका स्कोर मैक्सिमम करो। आपका स्कोर 90% में से ही 70-80% का स्कोर आ गया तो भी आप 300 क्रॉस कर दोगे, है ना। और अच्छी तरह से नोट्स आ गए तो इट्स डिफिकल्ट नहीं है। कैसे डिफिकल्ट नहीं है मैं बताता हूँ। ओके, आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट माय नोट्स आल्सो एंड अबाउट दिस शिवा स्कूल आल्सो। क्या हुआ है इस बार, सी अब तक ना हम सेल शिवा स्कूल में सेल बायोलॉजी और ये फिजियोलॉजी कंप्लीट कर चुके थे, तो मैंने बायोकेमिस्ट्री के कुछ मार्क्स तो इंक्लूड नहीं किए। बट वट एवर दिस पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी वी हैव कंप्लीटेड इन आवर सिलेबस, ओके, इन दिस 2 months of लास्ट 2 months नवंबर एंड दिसंबर। उसमें से इतने क्वेश्चन है इस पेपर में जो आप अटेंड कर सकते हो अच्छी तरह से। ओके, जो वो सलाइवरी सिक्रीशन का जो मैकेनिज्म था, यहाँ पर इसके लिए सिर्फ 5/10 मार्क्स है, 5 मार्क्स है। पर अगर आप ये पूरे टैली करोगे तो ये सिर्फ 2 चैप्टर्स में ही आप 135 मार्क्स हो रहे ऑलमोस्ट। तो 135 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो तो मे बी वहां पर जाके एटलीस्ट 100 मार्क्स का तो आप अच्छी तरह से लिख के आ सकते हो ना। 100 मार्क्स का सिर्फ 2 ही चैप्टर से, और 5 चैप्टर बाकी है पेपर 2 के। तो दिस इज द थिंग। अगर यूपीएससी में मेरे नोट्स क्यों बेनिफिशियल हो चुके हैं, क्योंकि नोट्स में मैं क्या दिया जो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है, या फिर जो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं ना तो वहां पर मेंशन नहीं की हुई है सीधा। इससे क्या होता है, फिर जो डिफिकल्ट पॉइंट है उसमें आपका टाइम नहीं जाता है, जो इजी और सिंप्लीफाइड फॉर्म है वही आप ज्यादा से ज्यादा बार रीड करते हो, और उससे यही होता है फिर मैक्सिमम स्कोर होता है। अगर आपने सिर्फ जो नोट्स में वही यहाँ पर लिख के आएगा ना, तो 135 स्कोर यहाँ कोई अप्रोच करेगा आपका 110 प्लस 120 प्लस को ही अप्रोच करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो आंसर है वो ऐसा आंसर जनरलाइज आंसर नहीं किया हुआ है, 5+ बुक से रेफर किया हुआ आंसर है, उसमें कुछ क्वालिटी है उस आंसर में। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैंने शेयर किए मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो क्वेश्चन था, उसमें पूरे ये पॉइंट भी दिए है, मैकेनिज्म ऑफ स्लाइडिंग, ये जो डायग्राम्स भी है, और ये हर एक डायग्राम्स मैंने खुद से ड्रॉ करके सिंप्लीफाई करके दिए है ना, तो आपको डिफिकल्ट भी नहीं जाएगी ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो ये 7A था, राइट। उसके बाद ये बायो एनर्जेटिक सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, एटीपी के सोर्सेस है, ये सारे सोर्सेस है। एटीपी एडीपी कहाँ से जनरेट हो रहा है, एटीपी, राइट। ऑक्सीजन सप्लाई, एनारोबिक सप्लाई, यहाँ एटीपी जनरेट हो रहा है ना, ये एटीपी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर एटीपी जनरेट हो रहा है। तो यही पूरे एग्जैक्टली कंटेंट है कि क्या होना चाहिए, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। देन दिस इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का जो डिटर्मिनेशन है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो इससे पहले अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, वो तो आएगा, सबको आएगा मोस्टली। तो ये जो इक्वेशन है जीएफआर रेट डिटर्मिनेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस इक्वेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर मैंने वीडियो में मैंने बताया भी था कि यहाँ पर क्या क्या मैंने वैल्यू पुट की थी, पी कैप, पी बोमस कैप्सूल, और वहां पर बोला था कि आपको ये कैसे यूजफुल रहेगा, ठीक है। देन दिस इज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का ये नोट्स है, यही वहां पर जाके आपको लिखने आना था। इसको ही आपको वो जो पार्ट है ना, ये लिखने के बाद मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे इसी के, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से कलेक्ट किया हुआ मटेरियल है, ये पूरा डायग्राम्स भी हाथ से ड्रॉ करके सिंप्लीफाई किए हुए हैं। तो ये जब आप लिख के आओगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि 10 में से बहुत लोग क्या बोलते हैं दैट यू विल गेट ऑलमोस्ट सेम मार्क्स, एवरेज मार्क्स फॉर एवरी दिस आंसर इन दिस जूलॉजी। जब आप ऐसा क्वालिटी का लिख के आओगे तब आपको एवरेज 5 मार्क्स नहीं मिलते,
इससे पहले क्या होता था, एवरेज ही लिख के आते थे, कोई क्वालिटी कंटेंट था ही नहीं, इसकी वजह से आपको 10 में से 3-4 ही मिलते थे। पर जब आप ऐसे लिख के आओगे क्वालिटी कंटेंट, तब आपको स्कोर 5+10 को अप्रोच करेगा तभी। देन दिस इज अबाउट दिस साइक्लिन, है ना, ये साइक्लिन का पूरा साइक्लिनिसिटी के कॉम्प्लेक्स कैसे सेल साइकिल रेगुलेट करता है। उसके बाद ये यहाँ पर एक डायग्राम भी है, अभी ये यहाँ पर तो आई नहीं है, यहाँ पर डायग्राम है साइक्लिन का, बेनिफिट कैसा होता है साइक्लिन को सीडीके को, वो भी एक्सप्लेन कर दिए एंटायर साइक्लिन का। ओके, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ, इसमें तो बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेम्ब्रेन में। ओके, उसके बाद ये है सिग्नल कंडक्शन, है, ये जो बोला था ना मैं मायलिनेटेड फाइबर में, ये देखो सोडियम एक्टिवेटेड चैनल्स है यहाँ पर। अभी और एक डायग्राम तो वो यहाँ पर आया नहीं एक्चुअली, आयोनिक बेसिस पे ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि आयंस कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंटायर इम्पल्स। ओके, so this was the thing about this entire lecture about how this question paper analysis is. Okay? अगर आपको क्वेश्चन पेपर पे कोई भी क्वेरीज होगी तो आप जस्ट पूछ सकते हो मुझे। ओके, यू कैन आस्क एनी क्वेरीज यू हैव। कुछ क्वेरीज है क्या आपको? सर मेरा है। कौन है, श्रुति है या फिर सोनल है? श्रुति। ओके, बोलो। सर बाय चांस अगर 3 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, लाइक सेम क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, सेम क्वेश्चन में 3 पार्ट है। अच्छा, सपोज सर जैसे आज सुबह में एक क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, तो सर अगर 10 मार्क्स का है एंड 3 पार्ट है, तो फिर कैसे वो एक होता है ना, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अपने दिमाग में करना कि उस हिसाब से आंसर लिखना है। बिकॉज हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एक में हम बहुत ज्यादा लिख दे रहे हैं और फिर मेरे पास दूसरे के लिए स्पेस नहीं बच रहा है। सी ऐसा मोस्टली ऐसा हो, बहुत बार क्वेश्चन आएगा ए बी सी पार्ट हो गए उस क्वेश्चन के। हाँ, तो ये यूजुअली क्या होता है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। पर ये कैसा होगा, अगर कहीं पर सपोज सिर्फ एग्जांपल पूछे तो एट दैट टाइम दिस एग्जांपल वाले में थोड़ा कम उसका सिग्निफिकेंस होगा, है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा एट दैट टाइम जब आपको क्वेश्चन आएगा ना। वो ऐसा फिक्स नहीं होता कि अगर 10 मार्क में 3 क्वेश्चन आएंगे तो हर एक को 3.33 मार्क्स की है, ऐसा फिक्स नहीं होगा, वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड रहता है। वो अभी ये बिना क्वेश्चन देखे कोई भी नहीं बता सकता कि हाँ हर एक क्वेश्चन को 3.33 होगा। आपको जस्ट अगर आपको उस क्वेश्चन पे नॉलेज है ना, देन आप बता सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन आपने सुबह में कौन सा क्वेश्चन पूछा था? सर वो था एक्टिव साइट वाला। एक्टिव साइट मतलब एक्टिव साइट सर, उसका एक्टिव साइट था, फिर बोला था कि एंजाइम कैटालिसिस बताने के लिए, फिर उसके बाद उसका सूटेबल एग्जांपल बताने के लिए। तो अभी ये क्वेश्चन कैसा होगा, आप हमें ऑलरेडी सूटेबल एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेन करना ही नहीं है, क्योंकि हमने वो अच्छी तरह से कभी किया नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, ये जो सूटेबल एक्सप्लेन दिस कैटालिसिस विद द सूटेबल एग्जांपल, इसको 2-3 लाइंस में ही कुछ अगर आता होगा तो ही लिखोगे, अदरवाइज क्या करोगे आप? वर्बैटिम में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि कौन है ये? इसको बोलेंगे तो इसको हमें सुनील कुमार। ठीक है, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, सिर्फ ये जो पहले वाला क्वेश्चन है ए या फिर बी है ना, उसको अच्छी तरह से लिखोगे, दो इसको पूरा पेज दो इसका। क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन ज्यादा लिखने से ऑलरेडी आपको आने मार्क्स पढ़ने नहीं वाले, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये सूटेबल एग्जांपल से कौन सा एग्जांपल अच्छी तरह से देना है। तो ऐसे केसेस में क्या कर दिया करो, जो आता है ना वो अच्छी तरह से लिखो, और जो नहीं आता है उसको 2-3 लाइन ही लिखना है, पूरा मत ओमिट करना, वो थोड़ा 2-3 लाइन ही लिखना, ठीक है। और सर एक आज आईएफएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। हाँ, सर मोनोसैकेराइड लिखते लिखते मेरा 1.5 पेज खत्म हो गया, एंड डाइसैकेराइड के लिए लाइक मेरे पास मतलब हार्डली हम उसको बस मतलब फिट किए हैं वो जगह पे, लाइक माल्टोज एंड सुक्रोज सिर्फ लिख के छोड़ दिए। मोनोसैकेराइड में क्या लिखा फिर आपने? सर मोनोसैकेराइड में वो होता क्या है, एंड देन चार्ट, जैसे चार्ट फॉर्म में आप बताए हो कि ट्रायोज टेट्रोज एंड ऑल, पूरा वो लिख के उस स्ट्रक्चर बनाने के समय ही पूरा मतलब टाइम चला, क्योंकि मतलब स्पेस चला जा रहा है। मैंने आपको बोला था ना कि स्ट्रक्चर सिर्फ आपको 2 या 3 ही लिखना है मोनोसैकेराइड में, हर एक में। टेट्रोज या फिर ट्रायोज में तो मैंने एक ही स्ट्रक्चर दिया था बाद में, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, सिर्फ अगर 10 मार्क्स को क्वेश्चन आता है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, मोनोसैकेराइड के 2 या फिर 3 ही एग्जाम्पल देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। फिर आपको जो कंटेंट है ना हर एक क्वेश्चन का, वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको मोनोसैकेराइड का अगर मोनोसैकेराइड का हमें 3 पेज लिखना बोला तो आप 3 पेज भी लिख सकोगे नोट से, राइट। पर हमें कंट्रोल करना पड़ता है, अगर लास्ट का जो पार्ट है ना वो उसको देख के। डाइसैकेराइड में भी आपको बहुत बार लिखना होता है, स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करना है। तो आपको अगर मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड 10 मार्क्स के है तो ऐसा सोच लो कि 1 पेज मोनोसैकेराइड ही लिखना है और 1 पेज डाइसैकेराइड ही लिखना है।
ये आना चाहिए एक्चुअली। क्या जब आप मल्टीपल ऐसा आप ट्राई करोगे ना लिखना तो आएगा आपको धीरे धीरे। एग्जैक्टली उसका कंटेंट में क्या आना चाहिए, ये भी स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली हमें, अगर क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पूछे नहीं है, सिर्फ मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड पूछा है, तो स्ट्रक्चर 4 या 5 ड्रॉ करने से आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलने वाले। आप मोनोसैकेराइड में फिर 2 ही स्ट्रक्चर डालो। अगर सिर्फ मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड क्वेश्चन है तो 2 मोनोसैकेराइड के क्वेश्चन और 2 डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर, बस उतना ही लिखो। उसके बाद सीधा उसका जो कुछ भी थ्योरी होगा, एग्जाम्पल होगा, उस एग्जाम्पल्स के अगर कुछ सिग्निफिकेंस होंगे तो वो दे दो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। इसके लिए आपको मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो डेवलप होने वाला है ऐसे ही, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दोगे ना तब फाइनली आप लिख दोगे वो अच्छा। अभी अगर डिफिकल्टी जा रहा है तो कोई बात नहीं, जाएगा ही, हर एक को जाता है डिफिकल्टी। इसलिए तो अभी से मॉडल आंसर लिखना स्टार्ट करना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये कमेंट्स देखते हैं क्या क्या है। पेपर 1 इज नाइसली एड्रेस्ड। यस, कौन है? सुनील कुमार सर। हाँ सुनील कुमार, बोलो। सर मैं अपने हिंदी मीडियम से हूँ, तो इसी बारे में चर्चा कर रहा था। अगर मतलब आपके कोर्सेज वगैरह जो हैं ये हिंदी के लिए अवेलेबल हैं? नहीं सी बेसिकली मतलब 90% में इंग्लिश ही यूज करता हूँ। कभी कभी कुछ अगर डिफिकल्ट कंसेप्ट आ गई, अगर मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वो हिंदी में रिपीट करता हूँ। अदरवाइज आई विल नॉट से कि मैं बायलिंगुअल लेता हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ, है ना, क्योंकि मोस्टली मैं इंग्लिश ही यूज करता हूँ मोस्टली। कभी कभी अगर हिंदी आ जाती है तो हिंदी ही कंटिन्यू हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी यूज करूंगा। हाँ, अगर कुछ पॉइंट है, अगर आपको वो समझ भी नहीं आ रहे तो वो मैं 100% रिपीट करता हूँ हिंदी में भी। पर मोस्टली मेरी इंग्लिश भी इतना कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में, मैं भी कुछ कॉन्वेंट का नहीं हूँ ना, तो काइंड ऑफ नॉर्मल इंग्लिश ही यूज करता हूँ मैं, इतना हेवी इंग्लिश नहीं है मेरा, ठीक है। अच्छा सर, तो डेमो क्लासेस वगैरह सर अवेलेबल है? डेमो क्लासेस मतलब बहुत सारे डेमो है ऑलरेडी। हमारा यूट्यूब का भी, जब मुझे टाइम मिलेगा तो यूट्यूब का सीरीज भी हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, पर मुझे टाइम ही नहीं है स्पेड बैच से, तो ये यूट्यूब का लेक्चर्स नहीं ले रहा मैं। पर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा लेक्चर्स है मेरे यूट्यूब में, है ना। और कुछ पेड वाले भी डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है ग्रुप पे, तो आप देख सकते हो वहाँ पर। सर एक डाउट था मेरा, जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ और यूपीएससी मेंस के अंदर अगर जूलॉजी मैं हिंदी माध्यम में लिखता हूँ, तो कुछ लोग जैसे ऐसा बोल रहे हैं कि आप अगर साइंस का सब्जेक्ट हिंदी माध्यम में लिखोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मार्क्स कम कट सकते हैं, ऐसा कुछ। बट मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं पेपर को देखूं, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर्स देखे हैं, इस बार का पेपर देखा है, तो मुझे आज इस टाइम ऐसा लगता है कि अगर मैं आज भी अगर अटेम्प्ट करूं तो मैं आराम से इसके अंदर 50% मार्क्स ला सकता हूं। सी ऐसा कभी भी नहीं होगा। लैंग्वेज आपके सिलेक्शन के लिए कभी भी बैरियर नहीं होगा। लैंग्वेज सिर्फ बैरियर किसके लिए होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को बैरियर होगा, अगर होगा भी तो बैरियर। आप अगर अच्छा लिख के आओगे ना तो लैंग्वेज की वजह से आपको कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अदरवाइज फिर ये जो लैंग्वेज वाले जो है टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर, ये डाउट मैंने बहुत से जगह पूछा और सब लोग ऐसा बोल रहे थे, तो फिर मैं अपने ह्यूमैनिटी अपने सब्जेक्ट की तरफ भी गया, बट वहां मुझे नहीं लगा कि सही चल रहा हूँ मैं। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ये सब करके देखे, कभी भी नहीं होगा, अच्छा लगा। कभी भी नहीं होगा। लैंग्वेज की वजह से आपके कभी भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पेपर स्टडी चेक करने वाले वो भी हिंदी वाले ही होंगे। अच्छा, है ना, इंग्लिश वाले थोड़ी होंगे। वगैरह हिंदी माध्यम के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो मैं कुछ? नहीं, हिंदी के लिए मैं कुछ भी, मतलब जीरो नॉलेज है हिंदी के लिए बुक्स, है ना, क्योंकि यही बोल रहा था कि हिंदी के लिए थोड़ा वो लिमिटेशन है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए, है ना, थोड़ा। अच्छा मुझे भी पता नहीं है, और मतलब मैं ढूंढ भी नहीं सकता, क्योंकि वो गूगल पे भी आप देख रहे हो कि कोई कुछ नहीं मिलता हिंदी में। अच्छा, है ना, तो वो डिफिकल्टी है। पर अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे, जैसे आप करवा रहे हो इंग्लिश में शॉर्ट नोट्स हैं आपके, या जो भी आप करवा रहे हो, इसको भी अगर हम ट्रांसलेट करें या इसके थ्रू हिंदी हम पढ़ना चाहें तो हो भी सकता है। मतलब इतना तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ना। ये जो नोट्स है ना, वो वही तो बोला, कॉन्वेंट लेवल का इंग्लिश नहीं है, तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो अपने लेवल पे, है ना, डिफिकल्ट नहीं जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश में ही जियोलॉजी नोट्स की अवेलेबिलिटी कम है, तो हिंदी में तो नहीं है, ऑलरेडी नहीं है बहुत ही। अच्छा। ये समस्या तो यही चल रही है ना सारी, बाकी तो और कोई दिक्कत ही नहीं थी। नहीं, इंग्लिश में ही अच्छा मटेरियल नहीं तो हिंदी में कहाँ आएगा, वही बोला। क्या बोल रहे हो? इंग्लिश में ही अच्छा अवेलेबल नहीं है ना अब तक जूलॉजी का मटेरियल, तो हिंदी में तो इंग्लिश में आने के बाद आएगा अच्छे, कोई भी ट्रांसलेट कर देगा बाद में। अभी के लिए तो इंग्लिश से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना।
नहीं, बात यही है ना कि अभी मैं मतलब इंग्लिश में लिख भी लूं, मेरा मतलब डाउट ये चल रहा है कि नहीं, आप हिंदी में जितना हिंदी बेस्ट लिख पाऊंगा उतना हिंदी मैं रखो इंग्लिश में उतना बेस्ट नहीं लिख सकता मैं। सुनील, आप हिंदी ही रखो, पर आप ट्रांसलेट कर दिया करो मेरे नोट्स को, ठीक है? और हम किसी और किसी का स्टूडेंट क्वेरीज लेते हैं हम, और किसी को क्वेरीज है क्या? यस हेलो हाँ, हेलो ममता। एक्सक्यूज मी सर, Yes. या सर मैं बोल रही कि अदर जो सब्जेक्ट्स है जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री, तो उसके कंपैरिजन क्या ज्योलॉजी स्कोरिंग है? स्कोरिंग तो है, ये बोल सकता हूँ मैं, पर उसके लिए क्योंकि जो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि स्कोरिंग है, मतलब उनकी एग्जैक्ट स्कोरिंग है। एक मिथ है सर कि जो आईआईटियंस होते हैं वो ज्यादा इसमें आते हैं, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं अदर ग्रेजुएशन वाले, तो नहीं, वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ये सारे मिथ्स ही होंगे, क्योंकि हमें जो यूपीएससी टॉपर्स भी है वो हर एक बैकग्राउंड से, हर एक स्टेट से भी है, तो हम ऐसा बोलना नहीं। मतलब ये क्या होता है, मिथ तो कोई भी बोलता है। मिथ तो ये भी था कि हाँ एंथ्रोपोलॉजी ले लो सक्सेस हो जाओगे, पब एड ले लो वो भी सक्सेस हो जाए, तो पर एक क्या होता है अल्टीमेटली 1-2 साल बाद, 2-3 साल बाद पता चल जाता है कि अरे नहीं, पब एड लेने की वजह से हम सक्सेस हो रहे थे, ऐसे नहीं थे, है ना? सारे लोग 4000 लोग पब एड ही ले रहे थे, उसकी वजह से ऑलरेडी कभी ना कभी पता चल जाता है कि ये मिथ ही है ना? आप भी मत सोचो कि अभी कैसा भी, ये कैसा कभी भी नहीं होगा कि कोई आईआईटी का या फिर कोई एमबीबीएस डॉक्टर ही क्वालिफाई हो रहा है ना? यूपीएससी कभी भी वहां पर हमें मतलब हमसे हमारे पोस्ट छीनने के लिए नहीं बैठी है, वो हमें मार्क्स देने के लिए बैठी है, पर हमें उसको यूपीएससी को उतना कंटेंट या फिर अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा। अगर हमने दे दिया तो हम कहाँ से भी हो, हिंदी में से हो या फिर नॉर्थ से हो या फिर साउथ से हो या फिर आईआईटी से हो, नॉर्मल इंस्टीट्यूट से हो। मेरा एक फ्रेंड जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट में बीफार्म किया है वो अभी सीएजी में है, उसका आईआरएस का है। आई हैव आल्सो डन बीफार्म एमफार्म। मेरा ये वो That's फ्रेंड है, I'm बीफार्म ही confused. किया और उसने 2012 Okay. को उसने बीफार्म क्वालिफाई किया है। उसके बाद वो हमेशा यूपीएससी करता था, पॉलिटिकल साइंस उसका ऑप्शनल है, 4 बार सर उसका। अगर हम्म। जी क्वालिटी कंटेंट के लिए मतलब क्या सोर्सेस रखे सर, आपके नोट्स या कोई ऐसे बुक हो? नहीं सी, मैं अभी जब तक ये इस साल का पेपर नहीं हुआ था ना, तब तक मैं इसने कॉन्फिडेंटली भी नहीं बोलता था कि हाँ सिर्फ मेरे नोट्स ही रेफर करो। ऑल्दो मेरे स्टूडेंट को तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरे नोट्स ही रेफर करो, उससे अलावा नहीं जाता। पर अगर आप इस साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे, 2 सिलेबस के टॉपिक्स में ही सिर्फ सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी में जब आप 135 तक अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अब मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ आपको कि आप जो कुछ भी मैं नोट्स दूंगा ना उससे बाहर आपको रेफर नहीं करना है, वही रेफर करो। तो इससे सर कैसे फायदा क्या परचेज होगा? करेंगे? सॉरी, सर कैसे परचेज करेंगे आपके नोट्स? वो आप क्या करो, मुझे मेरा नंबर तो मैं शेयर कर दूंगा लास्ट में, तब आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होगा। कोई भी सिर्फ मेरा नोट्स लो या फिर आपके पास कोई टॉपर का नोट्स है वो ले लो या फिर इवोल्यूशन के नोट्स है वो ले लो। ये एक बेनिफिट क्या होता है, अगर आप किसी के नोट्स ही अच्छा तरह से कर रहे हो जूलॉजी जैसे टॉपिक के लिए, है ना, बाकी के सब्जेक्ट के लिए मे बी आप खुद नोट्स बनाना ट्राई कर सकते हो, पर जूलॉजी का क्या है, कंटेंट इतना वास्ट है, सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप खुद नोट्स बनाने जाओगे तो आपका करंट अफेयर पीछे रह जाता है, जीएस पीछे रह जाता है, लैंग्वेज पीछे रह जाती है, तो ऑलरेडी जूलॉजी भी इतना बड़ा है वो भी पीछे रह जाएगा एंटायरली। तो अच्छी बात ये होती है कि कोई भी एक नोट्स करो जिसपे आपको ट्रस्ट है ना, जिसका स्टूडेंट भी अच्छा फीडबैक देते हैं, वो नोट्स ले लो और वही फॉलो करो रिलीजियसली। मे बी वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, मेरे जो 140 पेजेस के सेल बायोलॉजी के नोट्स है, वर्स्ट केस में मैक्सिमम ऐसा होगा कि 10 में से 1 क्वेश्चन उस नोट्स में से नहीं आएगा। पर अगर आप वो नोट्स अच्छी तरह से रट लोगे तो बाकी का जो 90% क्वेश्चन है या फिर बाकी के जो 9 क्वेश्चन है उसको मैक्सिमम स्कोर करोगे आप, है ना? तो इसके लिए एक ही नोट्स ले लो कौन सा भी, और उसको रिलीजियसली फॉलो करो, वो भी मल्टीपल टाइम्स ही रिवाइज करो, वही ठीक है। सर एक और चीज, हाँ, जैसे हम जनरल स्टडीज में मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें एग्जांपल्स या फिर कुछ मॉडल इस तरह की चीजें डालते हैं, तो क्या उसके लिए मतलब ज्योलॉजी ऑप्शनल क्या ऐसा कुछ करना होगा क्या? मतलब एग्जांपल्स तो समझ में आता है, कुछ ऐसे मॉडल टाइप में तो नहीं स्पेशली प्रिपेयर ये करना जो आप होगा मॉडल इनरिचमेंट के लिए? हाँ, ये जो आप मॉडल बोल रहे हैं ना, इसके लिए मैं सिखाते वक्त एक टर्म यूज करता हूँ, कंसेप्ट डायग्राम या फिर माइक्रो डायग्राम का कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट क्या होता है, एवरीथिंग जो कुछ भी मैं ऑलमोस्ट क्या बोलता हूँ स्टूडेंट को, अगर आप 5 लाइन कुछ लिख रहे हो ना, तो उससे अगर ये सपोज ये पेपर है एंटायरली, है ना, ये पेपर होता है आपका, है ना, रेक्टेंगुलर, अगर आप यहाँ पर 5 लाइन कुछ लिख रहे हो, अगर आपके पास थोड़ा क्रिएटिविटी है तो इसके ऊपर अगर कोई डायग्राम बन रहा है आपका छोटा बहुत, है ना, मे बी इस डायग्राम को फुल नेमिंग या फिर फुल लेबल करने की जरूरत नहीं है, मे बी उसको एक ही लेबल करो या फिर 2 ही लेबल करो आप, पर अगर ये जो थ्योरी में लिखा है वो अगर यहाँ पर एक्सप्लेन कर सके हो आप छोटे डायग्राम में,
तो ये आपको क्या करेगा, मैक्सिमम स्कोर करने के लिए फायदा होगा, है ना। एनरिचमेंट जो बोल रहे हो ना आप, यहाँ पर जूलॉजी में आप कर सकते हो, पर ये डिपेंड किस पे रहेगा, मतलब आपका उस टॉपिक का या फिर उस पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है उसके ऊपर रहेगा कि आप वो स्मॉलर डायग्राम में कैसे ये इसको कॉम्पैक्ट करोगे, तो उस पे ऊपर रहेगा। और जूलॉजी में ऑब्वियसली जूलॉजी आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शनल्स ऑफ दिस यूपीएससी और इवन जीएस पेपर, जूलॉजी तो ये एक ही ऑप्शन है जहाँ पर सिर्फ डायग्राम पे ही सब कुछ रहता है, तो इसी को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं आप। बाकी के किसी भी ऑप्शनल या फिर इवन जीएस पेपर में जितना नहीं कर सकते हो ना, उतना जूलॉजी में कर सकते हो, बिकॉज बेसिकली जूलॉजी ही डायग्राम पे ही ऊपर है एंटायरली, है ना। जूलॉजी स्कोरिंग तो है सर। मेरा एक डाउट है। हाँ, कौन है अभी? डायरेक्ट ममता, आप ही हो, आप ही पूछ रहे हो क्या? सर ममता मैं एक रिक्वेस्ट है सर, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप हाँ, में। मैं मेरा नंबर 9096468518। अल्दो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर है। सर 90 यहाँ पर लिखा है, स्क्रीन पे देख लो आप। ओके ओके, थैंक यू सर। स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, यस सर दिख रही है। और सर मेरे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मेरी ये पहली अटेम्प्ट है, तो मैं जूलॉजी ऑप्शनल चूज किया है, लेकिन मेरी जूलॉजी बैकग्राउंड नहीं है। मैं +2 में जूलॉजी मतलब मेरी बायोलॉजी थी, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ऑप्शनल जूलॉजी लूं। तो मैं स्टार्ट कर रही थी पढ़ने के लिए, लेकिन वो जो डायग्राम के लिए जो डायग्राम को और कॉन्सेप्ट को मतलब लिखते हैं, वो मुझे मतलब जो स्किल होती है राइटिंग की, मुझे वो थोड़ी सी गड़बड़ लगी। मतलब मैं एक काजल जावला की एक नोट लाई थी जो IAS टॉपर थी, तो उनकी नोट्स में देख रही थी, तो उनकी नोट्स मुझे थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई। मतलब मेरी +2 मतलब बायोलॉजी थी, तो अब भी नहीं है, तो मुझे थोड़ी डाउट है कि मुझे ऑप्शनल जूलॉजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं ऑर्गेनेल सेल की सारे मतलब जानती हूँ उनके बारे में, तो फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनके लिए मतलब +2 में जितना पढ़ाया जाता था मैं वो सब मुझे अच्छे से याद है। लेकिन जब मैं नोट प्रिफर कर रही थी तो मुझे लगा कि थोड़ी सी भाष लिखा है उसमें, थोड़ा ज्यादा लिखा है, तो उसे कैसे मतलब लिखूं राइटिंग में। देखो, सुष्मिता नाम है ना आपका? यस। कैसा है, ये जो कोई भी कंटेंट है किसी भी नोट्स का, वो जो नोट्स का कंटेंट होता है वो ऑब्वियसली +2 के ऊपर का ही लेवल है ना, डिग्री का लेवल का हमें आंसर लिखना है। पर ये जो आप बोल रहे ना कि आपको कंफ्यूज होता है कि वो स्मॉल में कैसे लिखे, या फिर डायग्राम्स में कैसे यूज करे, या फिर माइक्रो डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करे, या फिर एनरिच कैसे करे आपका आंसर, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड रहता है? ये डिपेंड उस चीज पे रहता है जिसपे एंटायर आपका अंडरस्टैंडिंग वो सब्जेक्ट का अच्छी तरह से आए। और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग जूलॉजी का या फिर एक टॉपिक का कब आएगा आपको? जब आपको जो रेफर कर रहे हो आप जो नोट्स या फिर जो कुछ भी मटेरियल आपके पास है जहां से आप रीड कर रहे हो वो चैप्टर, वो अगर सिंप्लीफाइड हो, वो अगर अच्छी तरह से दिया हुआ हो, वो अगर प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, प्रॉपर सीक्वेंस में हो सिलेबस के, तभी आपको इतना अंडरस्टैंडिंग आ जाता है उस सब्जेक्ट का या फिर जूलॉजी का, जो कि एग्जाम में आप जाके अच्छी तरह से आंसर लिख सकते हो, तब आएगा। हाँ? पर अगर आप काजल ज्वाला मैम के नोट्स अच्छे हैं, पर कोई प्रॉपर एक सीक्वेंस होना चाहिए ना। उन लोगों ने, मैम ने क्या किया है, मैम तो ज्वाइन हो गई है कहीं ना कहीं, है, तो उन्होंने सिर्फ उनके जो नोट्स थे वो शेयर किए, पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में तो नहीं शेयर किए ना उन्होंने कि हाँ ये एक पॉइंट सिलेबस के करके ये नोट्स है, ऐसे तो कोई शेयर नहीं करेगा, राइट। पर जब मेरा जो नोट्स है सपोज सेल बायोलॉजी का, फिजियोलॉजी का, वो उसमें क्या किया हुआ है मैंने, पहला पॉइंट सिलेबस का टू द लास्ट पॉइंट ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट के वहां पर प्रॉपर नोट्स है, प्रॉपर डायग्राम्स है सिंप्लीफाई करे हुए। तो ऐसे जब नोट्स आप रेफर करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आपको वो जो अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की वो हो जाएगी, और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर आप लिख सकते हो ऐसे या फिर यहाँ पर बना सकते हो डायग्राम, क्योंकि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आने के लिए सिर्फ +2 सफिशिएंट नहीं है। ऑब्वियसली आपको अच्छी तरह से कोई भी नोट्स रेफर करनी पड़ेगी। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि कोई भी नोट्स रेफर करो, आपको जो अच्छी लगे वो नोट्स रेफर करो, पर उससे ही आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग जो बोल रही है ना, जो कम है वो अच्छी आ जाएगी। अभी रही बात वेदर टू कीप दिस यूपीएससी ऑप्शनल, यस और नो, अगर आप अच्छा कंटेंट रेफर करोगी ना तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मुझे यूपीएससी या फिर जूलॉजी नहीं आ रहा है। अब तक आप कोई भी ऐसा कंटेंट यूज ही कर रही होगी जिससे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिला रहा।
जैसे कि सर जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन में जो है, मतलब इतने सारे मॉडल्स में आपने लिखा है कि मुझे कंफ्यूज है कि सारे के सारे लिखना है या मतलब जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसे ही लिखना है। सी अभी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर शॉर्ट में कैसे करना है, इसके लिए यही बोला ना, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नोट्स, मेरे भी नोट्स में ऑलमोस्ट 10 पेजेस के हैं, पर वहां पर लिखते वक्त मैंने मॉडल आंसर जब डिस्कस किया ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल का मेरे स्टूडेंट के साथ, तब मैंने वो सारा 10 पेजेस का कंटेंट 3 पेजेस में एडजस्ट करके दिया है उनको। वो यहाँ पर बताया कि हाँ ये कंटेंट आप यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर ये कंटेंट आप एक्सक्लूड कर सकते हो। आप समझ लो सुष्मिता, ये अंडरस्टैंडिंग जो सब्जेक्ट है वो अनलेस एंड अनटिल आप मतलब कुछ लेक्चर्स अटेंड करोगी या फिर कुछ नोट्स पढ़ोगी ना, तब तक नहीं आएगी। आपको खुद से समझ में नहीं आएगा अगर आप ऐसे ही पढ़ती रहोगी। पर मैंने जब इसका मॉडल आंसर बनाया ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल का 10 पेजेस का नोट्स देने के बाद, तब मैंने एक्चुअली उनको बताया था कि हाँ ये पॉइंट आप 3 पेजेस में आप ऐड कर सकते हो, या फिर अगर ये 10 मार्क को आया फिर 10 मोजाइक मॉडल तो कैसे एडजस्ट करना है। तो यही होती है ना, उन लोगों को भी पता नहीं था नोट्स रेफर करने के बाद कि ये 2 पेजेस में एक्चुअली लिखना क्या है, 3 पेजेस में एक्चुअली लिखना क्या है। अरे हर एक को वही प्रॉब्लम आएगा, पर अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, तो इसीलिए तो कोचिंग या फिर कोई मेंटर होना चाहिए ना, अदरवाइज हर कोई थोड़ी सीख के आता है। मैंने भी मेरे स्टूडेंट, मेरे भी जो टीचर है एमएससी जूलॉजी से, उनसे कांटेक्ट करके सीखा था मेरे फ्रॉम द 12th के बाद भी, और इवन एमटेक करने के बाद भी मैं उनसे ही बहुत कुछ सीखा हूँ। एमएससी की जूलॉजी करने हुए जो टीचर है मुझसे ना, तभी मुझे समझ में आया ना। तो आपको भी वही कुछ जरूरत है, अगर आपके कोई एमएससी जूलॉजी अगर लिखा होगा क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो स्ट्रक्चर में क्या फ्लूइड मोजाइक मॉडल लिखना पड़ेगा? हाँ, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बोला तो क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही तो है। ओके सर। सी यही बोल रहा मैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो तब तक आपको नहीं आ जाएगी जब तक आप एक्चुअली प्रॉपर उसके लेक्चर्स अटेंड नहीं करोगे। अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब खुद से कर सकते हो आप चीजें, पर अगर उसके पास टाइम है तो ही आपने इस एडवाइजेबल है अपने आप से करने। अदरवाइज क्या होगा, फिर अल्टीमेटली आपके पास नॉलेज भी है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल तो पता है आपको, पर आपको यही पता नहीं था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अगर वो लिखना है तो क्या फायदा है फिर उस नॉलेज का। इसके लिए कोई तो भी मेंटर ढूंढो। मैं नहीं बोलता कि मुझे ही सेलेक्ट करो, आपके कोई अगर टीचर है उसको बोलो, अगर आपके कोई फ्रेंड है क्वालिफाई हुए उससे कांटेक्ट करो, पर हैव सम मेंटर, अदरवाइज आपको ये अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छी नहीं आएगा उतना। ठीक है, और कोई है क्या क्वेरी, या फिर मैं एक मैसेजेस देखता हूँ एक एक करके। नीरज शी सेइंग पेपर 1 इज नाइसली एड्रेस्ड। सर दमयंती हियर। हाँ बोलो देन। मेरे को मतलब क्वेश्चन पेपर से एक डाउट था। मतलब जो हमारा 2020 का क्वेश्चन है ऑप्शनल का, 5A सर, सेक्शन A का 5A जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पेपर 1 का पेपर 2 का? पेपर 1 सर, डिविजन ऑफ बायोस्फीयर। एक मिनट, 5A पेपर 1 ना? यस सर। हाँ, डिवीजन ऑफ बायोस्फीयर। यस सर। सर मतलब यहाँ पे मुझे मतलब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व का डिवीजन बता रहा है या फिर बायोस्फीयर जो हमारा मतलब बायोस्फीयर जो स्टडी करते हैं ना हम, उसका ब्रॉड कंसेप्ट जो है ना बायोस्फीयर, उसका डिवीजन है मल्टीपल टाइम। बायोस्फीयर रिजर्व का नहीं होता ये। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है क्या, आपको इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका डिवीजन लग रहा है क्या? नहीं सर, मतलब जो कोर जोन बफर जोन होते हैं वो मैं उसके साथ कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन में। नहीं, वही बायोस्फीयर जो बेसिक ब्रॉड टर्म है ना बायोस्फीयर, उसको आपको डिवाइड करना है, उसको उसके मल्टीपल उसको पार्ट देना है ना? अच्छा ठीक है। और कुछ एक बार मैं मैसेजेस देखता हूँ क्या क्या। सर आई रिक्वेस्ट यू टू गिव सम रेफरेंस बुक्स फॉर जूलॉजी ऑप्शनल। शुभम दुबे जी, मैंने रेफरेंस बुक ऑलरेडी दे चुके हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत बार। फॉर रेफरेंस बुक यू कैन विजिट टेलीग्राम ग्रुप। हाँ वही प्रांजल तो बोल रहे हैं। देन विच टेलीग्राम ग्रुप, थैंक यू। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। वेल एक्सप्लेन सर। रेफरेंस बुक्स बताइए। देर इज नॉट वन रेफरेंस। हाँ, एक रेफरेंस बुक नहीं है ना, 1500 लगभग 15 रेफरेंस बुक है, तो वही इसीलिए तो नोट्स रेफर करना है। सर हाउ टू गेट बेनिफिटेड विथ योर कोर्स। पोको M2 इज आस्किंग हाउ टू गेट बेनिफिटेड। ज्वाइन करो कोर्स को, बेनिफिट हो जाएगा। ज्वाइन कहाँ करना है, टेलीग्राम पे पूछो ग्रुप पे, या फिर शिवा स्कूल नाम का वेबसाइट ज्वाइन करो, या फिर मुझे कांटेक्ट करो सीधा। सर आई नीड हेल्प ऑन बिलो क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। हाउ टू एनरोल योर कोर्स, प्रोवाइड लिंक इफ कैन आई ऑप्ट फॉर लेक्चर नोट्स, कैन यू प्रोवाइड बुक लिस्ट, आई विलिंग टू अपीयर फॉर मेंस आंसर राइटिंग 2021।
ओके, इस सब का आंसर ऑलरेडी मैंने बहुत बार दे चुका है इसी में, है ना। तो कोर्स को तो कोई भी एनरोल कर सकता है, शिवा स्कूल का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर में। अदरवाइज जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं यूट्यूब में इसका, वो तब ज्वाइन करो। अदरवाइज जो नंबर मैंने शेयर किया था मेरा 909646, इस पे सीधा कांटेक्ट करो 8518, तो मैं सब बता दूंगा ये जो कुछ भी क्वेरीज है आपको, ठीक है। और आंसर राइटिंग जैसा कोई पर्टिकुलर सेशन नहीं होता, ऑलरेडी जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स है, ओल्ड स्टूडेंट्स उनके ही मैं आंसर चेक करता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, है ना। ये कॉस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कॉस्ट लेके आंसर चेक करने का, ठीक है। सर आई नीड हेल्प ऑन, ये हो गया, ठीक है। या आपका मोबाइल नंबर शेयर किया, मैंने भी मोबाइल नंबर शेयर किया, आप कॉल कर सकते हैं। सर आपकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाते हो क्या? और क्लास टेस्ट सीरीज होगी आफ्टर प्रीलिम्स के बाद, जब क्रैश कोर्स होगा 45 डेज का, तो तब इस 45 डेज क्रैश कोर्स में इन्हीं में से 10 लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी। 10 से ज्यादा मैं स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर चेक नहीं कर सकता, 10 के ही कर सकता हूँ, ठीक है। और किसी को क्वेरीज नहीं है? बस हो गया क्वेरीज। इफ नो क्वेरीज आर देयर देन वी विल स्टॉप हियर। किसी को? हाँ, कौन है अभी? सुनील कुमार है क्या? सुनील सर। हाँ बोलो। सर जो आप ये बोल रहे हो कि जो 10 मेंबर्स कोई टेस्ट सीरीज का रहेगा, ये मतलब किस आधार पर निकाले जाएंगे 10 मेंबर्स? परफॉर्मेंस या फिर? परफॉर्मेंस पे नहीं होगा, अभी जो कुछ भी ये क्रैश कोर्स का एडमिशन लगे ना, 45 डेज का क्रैश कोर्स होगा यहाँ पर प्रीलिम्स के इमीडिएटली बाद, इसी में से जो पहले लेगा उसमें से कोई भी 10 एडमिशन। हमेशा मैं क्या करता हूँ, एडमिशन बोलता हूँ कि हाँ आज एडमिशन चालू होने वाला है इस कोर्स का, तो जो पहले 10 लेंगे, मोस्टली इस 10 में से तो 5 से 6 तो मेरे ओल्ड स्टूडेंट ही होंगे जिसके लिए ऑलरेडी बुक है रिजर्व, जो हर एक कोर्स ले रहे होंगे। इसके बाद जो कुछ बचेंगे 2-4 वो इसमें से होंगे जो कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं उसमें से, है ना। तो 10 लोगों का ही मैं आंसर चेक कर सकता हूँ। 10 क्वेश्चन में पेपर। अभी जो कोर्सेज है सर वो रिकॉर्डेड है क्या? कौन सा? अभी जो कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पर वो रिकॉर्डेड है या लाइव में मिलेंगे? अभी जो ले रहा हूँ वो क्या? हाँ, अभी जो ले रहा हूँ वो रिकॉर्डेड भी है ना, लाइव भी देता हूँ हर रोज, और वही अपलोड होता है ग्रुप पे, वेबसाइट पे भी अपलोड होता है मेरे, और मेरे जो एप्लीकेशन है। अगर हम आज ज्वाइन करते हैं तो पीछे वाला रिकॉर्डेड रहेगा और आगे लाइव मिलेगा? हाँ, अभी अगर आज ज्वाइन करते हो ना आप, सेल बायोलॉजी अलग अलग है, सेल बायोलॉजी का अलग है, फिजियो का अलग है, बायोकेमिस्ट्री का अलग है। अगर आप सेल बायोलॉजी ज्वाइन करते हो तो सेल बायोलॉजी का पूरा अब तक का रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिजियोलॉजी ज्वाइन करते हो तो फिजियोलॉजी का अब तक का पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इसका 14 लेक्चर है, फिजियोलॉजी के 29 लेक्चर है, बायोकेमिस्ट्री के लास्ट के लेक्चर्स चल रहे हैं अभी, मतलब और 2 या 3 लेक्चर्स होंगे लाइव बायोकेमिस्ट्री के, पर इसके रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 22 रिकॉर्डेड लेक्चर्स है अभी तक। और सबसे बड़ी बात, नॉन कोडेट्स का लाइव सेशन चालू हो रहा है कल से, नॉन कोडेटा का 6 to 8 PM इसका लाइव बैचेस का टाइम रहेगा नॉन कोडेट्स का, जो कल से चालू होने वाला है 6 बजे से। अगर आप लेना चाहते हो तो रिकॉर्डेड से अच्छा कोई लाइव ज्वाइन करो पहले, इससे क्या होगा, आप एक लिंक में आ जाओगे। सर मैं वैसे वर्क प्रोफेशनल हूँ, 7 बजे मतलब फ्री होता हूँ, जैसे अभी आपका बीच में मेरे को म्यूट किया था, मैं मीटिंग में चल भी रहा था साथ। ठीक है, वर्क प्रोफेशनल है तो वही ना, वर्क प्रोफेशनल तो प्रॉब्लम आएगा ही, फिर आप ये सकते हो इसका रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकते हो। बिल्कुल आएगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, वो मैं रिकॉर्डेड के लिए देख लूंगा। हाँ, इमीडिएट, क्योंकि ये 6 से 8 हो गया ना, तो इसके मोस्टली 80% टाइम क्या होता है, मैं 1 घंटे के अंदर ही रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ तब रह जाता है, अदरवाइज 1 घंटे के अंदर ये पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाता है। वैसे मतलब अगर कोई डाउट हो तो वो तो अपने रिकॉर्ड में देख के बाद में कभी पूछ सकते हैं। डाउट होगा तो डाउट सेशंस भी होते हैं कभी कभी, और आप कॉल भी कर सकते हो मुझे, या फिर हर एक सेल बायोलॉजी का अलग का टेलीग्राम ग्रुप है, फिजियोलॉजी का अलग का टेलीग्राम ग्रुप है, बायोकेमिस्ट्री का अलग टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप पे आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेरीज? 10 लोग हैं, लेक्चर्स को नहीं आते पर यहाँ पर आ गए, कौन है? और किसी को कुछ क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप, वी विल क्लोज दिस सेशन टुडे। ठीक है, ओके, नो क्वेरीज। एक बार लास्ट, सर आपकी टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल करवाते हो, हम बोल दिया। ठीक है, देन वी विल स्टॉप आवर सेशन हियर, है ना। पूरा एनालिसिस कर दिया मोस्टली, पूरा जो क्वेश्चन आए थे या फिर कैसे आए हैं, है ना, पूरा एनालिसिस कर दिया हमने। सो जो अगर रेगुलर स्टूडेंट तो हम कल मिलेंगे 6 बजे हमारे लेक्चर के साथ, इन्वर्टिब्रेट्स के 6 PM लाइव। ओके, ठीक है, सो टिल देन बाय बाय।
गुड नाइट।